Hello and good evening, and welcome to class number 3 of the Economics Foundation course. I hope you can all see and hear me. If you can see and hear me, please write yes in the chat. Today I cannot speak louder than this. My voice is uh, not up to the mark, maybe because I'm not feeling very well. I have a slight itch in my throat. So I hope you will cooperate. I hope this voice level is also audible to you because इससे तेज मैं बोल नहीं पाऊंगा. Right. Now this is class number 3 today, and yesterday we had left at the point where we were studying the production possibilities curve. Today, other than understanding the production possibilities curve, we will also understand the law of demand. And there is also a test for you today at the end of this class, where we will solve some previous year questions, and that will be in a test format just to see how much we have understood. Okay. Now I know there were some doubts with regards to PPC. काफी हद तक समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया होगा. So we will start from the PPC only. We will start from that point only, right? Today, it is not really in my ability to see all the messages while I'm explaining such a concept. So the chat is kept private, and I will not be able to read your messages till I am done with the PPC. So it is my humble request. This is not an easy concept to grasp. There have been questions on it. It is my humble request for the next 30 minutes. Please don't spam the chat and please listen to what I have to say. ताकि जब हम ये concept समझ जाएं, उसके बाद आप जो questions हैं अपने chat में पूछ लेना और मैं देख लूंगा. Somebody is sitting today dedicatedly to read the comments that you put in the chat so that I only get the relevant ones. नहीं तो बहुत spamming होती है and I am unable to read. So first we will understand the PPC in detail. It's a humble request yet again to please hold the chat. It does nothing than distract me at this moment because इस टाइम पे मैं आपके messages नहीं पढ़ सकता. It is only a source of distraction for me. ठीक है? Now I hope you will comply. Okay. Good evening and let's get started. Okay. कल हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, PPC हम पढ़ रहे थे. We will understand this concept again in detail ताकि हमें ये समझ आ जाए इसके सारे implications, इसका relationship with scarcity, with opportunity cost, with efficiency, हम वो सारी चीजें देखेंगे. And then we will see some questions that have come with regards to PPC. Next 1 hour, I request you to keep your concentration high, to keep a notebook and a pen out, and to not spam the chat because it only distracts me. This is the last time I'm saying this. Please keep a notebook out. ये एक difficult concept है, इसे समझना जरूरी है आगे जाने के लिए. इस पे questions भी आते हैं. So please, next 1 hour, keep a notebook out and write rather than write in the chat. I have a slight voice problem today because I am not feeling well. मैं इससे तेज नहीं बोल सकता हूँ आज. So I hope you will bear with me. Okay. Now, yesterday we were trying to understand the production possibilities curve. For this, we had taken the example of Pooja's firm. In Pooja's firm, we said that there are 20 people and she can produce either one of these two things. Either she can produce iPhones or she can produce mountain bikes. ये दोनों चीजें हमने कल बात करी थी. ठीक है, आई होप इतना सबको याद होगा. इसके आगे से सारी चीजें हम दोबारा एक बार देखते हैं. नाउ लेट अस लुक एट केस बाय केस बेसिस पे क्या हो रहा था इन पूजा's फर्म. देखते हैं. नाउ अब इस स्लाइड को देखो. पूजा की फर्म में दो तरह के लोग हैं. फर्स्ट टाइप इज दिस सर्कल. जो सर्कल टाइप के लोग हैं, सर्कल टाइप के लोग कैसे हैं? सर्कल टाइप के लोग कैन प्रोड्यूस 1 आईफोन पर डे. ये हमने बात करी थी. अगर आप इनको फोर्स करोगे मोटर बाइक्स या माउंटेन बाइक्स बनाने के लिए तो दे विल मेक 0.5 माउंटेन बाइक्स पर डे. जो दूसरे तरह के लोग हैं वो स्क्वायर लोग हैं. इफ यू फोर्स देम टू मेक mountain bikes, they are experts in mountain bikes, they can make 1 mountain bike per day. But if they are asked to make iPhones, they will make 0.5 iPhones per day. यहां तक हमने कल बात करी थी. I hope this much is clear. इतना याद है कल सबको? We had discussed these two things. There is expertise. There is one set of people who are experts in making iPhones, but they can also be asked to make mountain bikes, but उनकी efficiency थोड़ी कम होगी. दूसरा set of people are experts in making mountain bikes. They can also be asked to make iPhones, but iPhones बनाते हुए वो
उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे। नाउ दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 में पूजा सेज कि जितने भी तुम सर्कल्स हो, दीज आर 10 सर्कल्स, 10 पीपल, जितने भी तुम सर्कल्स हो तुम सारे आईफोन्स बनाओ। If all the circles make iPhones, how many iPhones can they make? One iPhone per day, one circle can make. There are 10 circles, 10 iPhones per day will be made. Squares को वो कहती है make mountain bikes. You are experts in making mountain bikes, you make mountain bikes. When squares make mountain bikes, how many mountain bikes will be made? Squares are experts in making mountain bikes, so 10 mountain bikes per day will be made. This is the case 1. And Pooja here, if I am plotting her production, we are seeing how much Pooja is plotting. So she in case 1 is making 10 iPhones and she is making 10 mountain bikes. This is case 1 of the production possibilities curve. ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स गो टू केस 2. नाउ केस 1 को याद रखना, केस 1 इज मार्क्ड इन ग्रीन, इट इज द सेम एज द लास्ट स्लाइड. केस 2, केस 2 में पूजा क्या कहती है? That everyone will make iPhones regardless of who you are. You have to make iPhones. Now why is Pooja doing this? हो सकता है पूजा के ससुराल से फोन आया हो कि आईफोन बनाने हैं, हो सकता है पूजा को ये पता चला हो कि आईफोन्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है मार्केट में. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रीजनिंग, बट पूजा हैज डिसाइडेड दैट दे ऑल हैव टू मेक आईफोन्स. व्हेन पूजा डिसाइड्स दैट ऑल ऑफ देम विल मेक आईफोन्स, पहले वो सर्कल से बात करती है. सर्कल्स तो आईफोन बनाने में एक्सपर्ट है. 10 circles are asked to make iPhones. They will make one iPhone per day. Total 10 iPhones will be made. Then there are squares. Squares को पूजा कहती है, you are experts in making mountain bikes, but still you are expert in making mountain bikes, but still I want you to make iPhones. They will make 0.5 iPhones per day. 10 squares making 0.5 iPhones per day each becomes 10 into 0.5, 5 iPhones per day. Total items produced is 15, 10 iPhones here, 5 iPhones here. So अब in the case 2, we plot it here on the graph. 0 mountain bikes are made, so 15, 0 and 15 iPhones are made. This is case 2. In case 2, Pooja makes only iPhones and total iPhones made are 15. 15 iPhones, 0 mountain bikes. ये clear है? Case 2 is clear. Any doubt about case 2? नहीं होना चाहिए, because fairly simple है ना, fairly simple. Now let's go to case 3. In case 3, Pooja says that all of you make mountain bikes. I want everyone. Pooja has decided that she will go on a mountain biking spree. So she says, everyone, please make mountain bikes. Regardless of what your expertise is, I don't care you are experts in what thing, go make mountain bikes. So these 10 squares are experts in making mountain bikes. Pooja says, go make mountain bikes. They, all of them can make one mountain bike per day. 10 people will make 10 mountain bike per day. Total mountain bikes per day is made 10. फिर वो आती है सर्कल्स पे. सर्कल्स को कहती है तुम भी माउंटेन बाइक्स बनाओ. But these people are not experts in making mountain bikes. When circles are asked to make mountain bikes, they can make only 0.5 mountain bike per day. So 10 into 0.5 equal to 5 mountain bikes per day are made. Total mountain bikes, squares make 10 mountain bikes, circles make 5 mountain bikes. Total mountain bikes are made 15. Total iPhones made are 0. And this is case 3 on the graph, 0, 15. 0 iPhones, 15 mountain bikes. This is case 3. Case 1, case 2 same colors में जिसमें हमने डिस्कस किया था, they are plotted. यहाँ पे 15, 0, 10, 10, 0, 15. These are the 3 cases we have discussed so far. अब एक और केस देखते हैं. यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. एक्सपर्टीज की वजह से ये लोग ज्यादा माउंटेन बाइक्स बनाते हैं, ये लोग कम माउंटेन बाइक्स बनाते हैं. दैट इज ऑल्सो रिटन हियर. आगे देखते हैं. केस 4. In case 4, Pooja says that I specifically want everyone who makes iPhones, जो iPhone बनाने में एक्सपर्ट है, वो तो सब iPhones बनाएं, बट 4 लोग जो माउंटेन बाइक बनाने में एक्सपर्ट हैं, वो भी iPhone बनाएं. So she says all circles will make mountain bikes, all circles will make iPhones, 4 squares will also make iPhones,
रेस्ट ऑफ द स्क्वायर्स विल मेक माउंटेन बाइक्स। तो पूजा क्या कहती है, जितने सर्कल्स हैं, यू आर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग आईफोन्स, ऑल ऑफ यू मेक आईफोन्स। कितने आईफोन्स बने? 10 पर डे। यहां से 4 लोगों को उठा के कहती है यू ऑल्सो मेक आईफोन्स। हाउ मेनी आईफोन्स कैन दीज पीपल मेक? 0.5। सो 4 into 0.5 is 2. Total iPhones made in this case will be 12. How many people are left? कितने लोग बच गए? 6 people are left. These 6 people say continue to make mountain bikes. ये experts हैं mountain bike बनाने में. 6 into 1, 6 mountain bikes. So case 4, if I have to plot on this graph, case 4 comes here where 12 iPhones are made and 6 mountain bikes are made. All circles are producing iPhones, 4 squares are producing iPhones and 6 squares are producing mountain bikes. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. So this is case 4 on the graph. अगला केस देखते हैं, केस 5. अब पूजा का सडनली मन करता है कि मुझे माउंटेन बाइक्स चाहिए, एंड नो ऑफेंस टू पूजा, आई एम जस्ट यूजिंग यू एज एन एग्जांपल, राइट. अब पूजा कहती है मुझे तो माउंटेन बाइक ज्यादा चाहिए. सो पूजा सेज इन केस 5 दैट ऑल स्क्वायर्स continue to make mountain bikes. When all squares, all 10 squares will make mountain bikes, how many mountain bikes are made? 10 mountain bikes per day. She says 4 circles will also make mountain bikes. When 4 circles are asked to make mountain bikes, 4 into 0.5, 2 mountain bikes more are made. Total mountain bikes are made are 10 plus 2 equal to 12. So 12 mountain bikes are made. कितने लोग रह गए? 6 circles are left. 6 circles are asked, तुम सब आईफोन बनाओ. 6 into 1, 6 per day. 6 iPhones are made. On this graph, I have now put this as 0.5, which is 6, 12. Now, all of these 5 points are various possibilities of production. कि पूजा के पास क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्शन का मेथड है. वो सारे आईफोन बना सकती है, वो सारे माउंटेन बाइक बना सकती है, वो कुछ आईफोन कुछ माउंटेन बाइक बना सकती है, वो एग्जैक्टली इक्वल आईफोन एग्जैक्टली इक्वल माउंटेन बाइक बना सकती है. What are these points? All 1, 2, 3, 4, 5 are what she can possibly produce. What she can possibly produce is exactly what is the production possibilities curve. All of these points 1, 2, 3, 4, 5 we have just seen. अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो क्या बन गया? The graph looks something like this. This is my production possibilities curve. She can either produce 15 iPhones, she can either produce 15 mountain bikes, or any of the points on this line, जो ये line इन points को जोड़ के बनी है. Now is the shape of the PPC clear? क्या shape दिख गई है PPC की? मैंने x और y कोऑर्डिनेट उल्टा नहीं लिखा है. This is by choice. This is by choice that I have written 15 first and 0 later. राइट, बट शेप दिख गई पीपीसी की हमें. अब कोई भी पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड. अब ये तो पहला कंसेप्ट था, आगे देखते हैं. अब ध्यान से सुनना प्लीज. नाउ यू हैव टू लिसन प्रॉपरली. प्लीज लिसन केयरफुली फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड. यहीं से कल शायद समझ नहीं आया था कुछ लोगों को, तो प्लीज लिसन केयरफुली फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं केस नंबर 6. इन केस नंबर 6 व्हाट हैपेंस, पूजा ने अपनी फैक्ट्री में यही बोला हुआ है कि जो जिसमें एक्सपर्ट है वो वही बनाएगा. पूजा ने अपनी फैक्ट्री में बोला है whoever is the expert in making that thing they will make the same thing. जब पूजा एक्सपर्टीज के हिसाब से चल रही थी तो 10 आईफोन बन रहे थे, 10 माउंटेन बाइक्स बन रही थी. बट केस 6 में क्या हुआ, 3 सर्कल्स काम पे ही नहीं आए. These 3 circles took these 3 squares out for dates and they decided not to go to work. This circle took this square out to a date, this circle took this square out to a date, this circle took this square out to a date, and they decided that we will not come to work. So there was lack of full employment. तो कितने लोग काम पे आए? 7 circles came to work, 7 squares came to work. Although all of them were sad because they were all single,
but 7 circles came to work and 7 squares came to work. 7 circles produced iPhones. कितने iPhone बने? 7 iPhones. 7 squares came to work. कितने iPhones बने? कितने मोटर बाइक्स बने? 7 मोटर बाइक्स. सो 7 सिंगल सर्कल और 7 सिंगल स्क्वायर्स काम पर आए. उन्होंने थोड़ी दुखी होके बट काम तो अपना पूरा ही किया. 7 iPhones were made, 7 mountain bikes were made. Point 6 lies here. 7,7. Now, as you will see, this point is not on the production possibilities curve. Why? Because maximum possible production was 10,10. Production हुई कितनी? 7,7. So this point, point 6, case 6, where 3 circles took 3 squares out for dates, this point is inside the production possibilities curve. But क्यों? Why is it inside? इसका रीजन क्या है? Reason was lack of full employment. The factor of production that we are considering here is labor. जो labor है, the factor of production of labor is not fully used. Because 6 लोग डेट्स पे हैं, सिर्फ 14 ही लोग काम पर आए हैं, तो 14 ही चीजें बन रही हैं. So it is not fully used. तो यहां पर क्या हुआ? Because of lack of full employment, the point of production was inside the production possibilities curve. This is the first thing that you need to write down. Please write this down. At a lack of full employment, we operate inside the production possibilities curve. ये clear है? At a lack of full employment, we are operating inside the production. ये लिख लो please. I want you to keep one page today. Specifically, मैं 5-6 चीजें आपको लिखने को बोलूंगा. Please write this down. ठीक है? जब लिख लो प्लीज राइट डन और रिटन. जब डन लिख दोगे तभी आगे चलूंगा. राइट दिस डाउन. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस लाइन डाउन. एट अ लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट वी ऑपरेट इनसाइड द पीपीसी. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग डन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब क्या हुआ कि पूजा के जो एम्प्लॉयज थे, दिस इज नाउ केस नंबर 7. पूजा के जो एम्प्लॉयज थे वो आपके जैसे हो गए. तो अब हम देखेंगे केस नंबर 7. पूजा's एम्प्लॉयज आर नाउ लाइक यू. देखो, 10 circles, all 10 circles came to work, all of them were single. ठीक है, सारे काम पे आए क्योंकि सारे सिंगल थे. They had no dates to go to, right? Like you and me. Okay, all 10 circles came to work, but 2 of these circles were watching Instagram reels the entire time. इन्होंने ढंग से काम नहीं किया. इन्होंने सोचा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, काम छोड़ो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, वो ज्यादा मैटर करती हैं. So these 2 circles started watching Instagram reels. तो आइडियली एक सर्कल की कैपेसिटी क्या है? एक सर्कल की कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस 1 iPhone पर डे. बट बिकॉज दिस सर्कल स्टार्टेड वेस्टिंग देयर टाइम लाइक यू एंड मी, उन्होंने अपना टाइम वेस्ट स्टार्ट कर दिया रील्स देख के. व्हेन दीज 2 सर्कल्स स्टार्टेड वॉचिंग रील्स, देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिड्यूस्ड. इनकी एक्चुअल कैपेसिटी थी कि ये एक आईफोन पर डे प्रोड्यूस कर सकते थे, बट ये टाइम वेस्ट करके रील्स देखने लग गए. जब ये टाइम वेस्ट करके रील्स देखने लग गए, तो रादर देन प्रोड्यूसिंग 1 iPhone per day, these circles who are experts were only able to produce 0.5 iPhones per day. तो now they have come to work. काम पर ये आए हैं, बट ये काम पे रील्स देख रहे हैं. तो अब यहां पर क्या हुआ? टोटल आईफोन्स प्रोड्यूस्ड आर हाउ मच? ये 8 लोग तो ढंग से काम कर रहे थे. These 8 people were, working properly. These 2 people were watching reels. तो कितने आईफोन्स बने? 9 आईफोन्स वर मेड. क्योंकि ये 2 लोगों ने सिर्फ 0.5 आईफोन्स पर डे बनाए बिकॉज इन्होंने रील्स देखे. स्क्वायर्स की बात देखते हैं. स्क्वायर्स और भी बंडल थे. स्क्वायर्स भी सारे काम पे आए. द स्क्वायर्स वर आल्सो ऑल सिंगल. बट ये जो 4 स्क्वायर थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम चैट स्पैम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे. जैसे हम में से कई लोग हैं, है ना. तो ये 4 स्क्वायर्स ने क्या किया कि वी विल स्पैम इन द चैट.
Now these squares are experts in making mountain bikes. These squares can make one mountain bike per day. But because ये जो 4 squares थे, इन 4 squares का सारा ध्यान ये था कि हम चैट को स्पैम करते हैं. From their ability to actually produce one mountain bike per day, इन squares की ability कम हो गई और ये 4 square produce कर पाए सिर्फ 0.5 mountain bike per day. इनकी एबिलिटी भी, एफिशिएंसी भी आधी रह गई क्योंकि इनको चैट में स्पैम करना था, नोटबुक में नहीं देखना था, समझना नहीं था, चैट में लिखने में ज्यादा जल्दी थी, तो इनकी एबिलिटी भी आधी रह गई. तो हाउ मेनी माउंटेन बाइक्स विल बी प्रोड्यूस नाउ? ये 6 स्क्वायर तो ठीक है, तो ये तो 6 माउंटेन बाइक प्रोड्यूस करेंगे. These 4 are the deranged ones who will spam in the chat. Now these 4 into इनकी आधी एबिलिटी रह गई equal to 2. तो 6 plus 2, 8 mountain bikes were produced, 9 iPhones were produced because these 2 were watching reels and these 4 were spamming in the chat. ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब इस केस में टोटल आउटपुट क्या है? 9 iPhones are produced, 8 mountain bikes are produced. The point is point number 7. Now point number 7 is also inside the production possibilities curve. जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन है उससे ये प्रोडक्शन कम है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल इज 10 आईफोन्स एंड 10 माउंटेन बाइक्स. Point 7 lies inside the production possibilities curve. What is the reason here? The reason is wastage of time. और वेस्टेज को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? प्लीज अभी प्रोडक्टिव एलोकेटिव भूल जाना. When we are wasting, we are not having efficiency. So when there is not enough efficiency, they are not performing their job with efficiency, they are wasting their time. तो क्या हुआ? 0.7, 9,8. 0.7 is also inside the production possibility curve. Why is it inside production possibility curve? Because of lack of efficiency. तो अब एक लाइन आप और लिखो. Whenever there is wastage or whenever there is lack of efficiency, we operate inside the PPC. Please write this line down. Please write this line down. जब लिख लो तो written या done लिख लेना, बोल देना. When there is wastage or lack of efficiency, we operate inside the PPC. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Now we will consider 2 scenarios. The first scenario is Christmas. The second scenario is New Year. बहुत ध्यान से ये एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो. इस एग्जाम्पल में काफी कंट्रोवर्सी होने के चांसेस थे, तो मैंने ये वाले फेस्टिवल्स चूज किए हैं. एक है क्रिसमस, एक है न्यू ईयर. क्रिसमस वाले दिन पे ऑल ऑफ द पीपल मार्क्ड इन पिंक डिसाइड टू टेक अ हॉलिडे. तो क्रिसमस वाले दिन these 7 circles will take a holiday and these 7 squares will take a holiday. ये क्रिसमस है, हम काम पर नहीं आ रहे. तो क्या हुआ? There was lack of full employment. Employment यहां पर नहीं हुई full. Resources were not used fully. Employment was not done properly. Full resource use was not done. तो क्रिसमस वाले दिन क्या हुआ? सिर्फ 3 सर्कल्स काम पे आए, सिर्फ 3 स्क्वायर्स काम पे आए. 3 सर्कल्स ने क्या प्रोड्यूस किए? 3 आईफोन. 3 स्क्वायर्स ने क्या प्रोड्यूस किए? 3 माउंटेन बाइक. पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वाज x. x is 3,3. कोऑर्डिनेट्स उल्टे सीधे पे मत जाओ, कोऑर्डिनेट नेमिंग इज जस्ट अ कन्वेंशन. 3,3, 3 आईफोन्स, 3 माउंटेन बाइक्स. ठीक है, क्योंकि क्रिसमस था तो 6 यहां पर 7 सर्कल्स नहीं आए, 7 स्क्वायर्स नहीं आए. ये आपस में क्या कर रहे थे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. 3 सर्कल्स आर लेफ्ट, 3 squares are left. Okay, and point x is there, 3,3. Second holiday था न्यू ईयर. न्यू ईयर पे इन चारों ने छुट्टी ली. 4 circles take a holiday and 4 squares took a holiday. तो फिर न्यू ईयर पे क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं थी. यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ रिसोर्सेज वाज नॉट फुली डन. फुल यूज नहीं हो रहा था.
out of 10 only 6 people were being used, out of 10 only 6 people were being used. अब यहां पर 6 सर्कल्स आए, सर्कल्स ने आईफोन्स बनाए, so 6 iPhones were made. Squares आए, squares में 6 mountain bikes were there, 6 iPhones, 6 mountain bikes. Point y, point y is 6,6. So this at the holiday of Christmas, there were only production of 3,3. At the holiday of New Year, there was 6,6. अब ये दो पॉइंट्स देखो, x और y. Y is closer to PPC because maximum possible output is 10,10. Y is closer to the PPC. X is farther away from the PPC. So इससे मेरे को क्या समझा? The closer I am to the PPC, जितना मैं PPC के पास हूं, उतना I am closer to the maximum production. जितना मैं PPC के पास हूं, उतना I am closer to the maximum production. तो अब let's look at this case again. यही केस है, सेम हॉलिडे वाला केस ही है. Y is 6,6, maximum is 10,10, x is 3,3. In case of x, there is more unemployment, more non-usage of resources. Only 3 people plus 3 people are being used. यहां पर there is less unemployment. 6 people plus 6 people are being used. The closer I am to the PPC, the closer I am to the PPC, the closer I am to maximum possible production. अगर सब लोग आ जाएंगे काम पे तो क्या प्रोडक्शन होगी? 10,10. अब एक और केस देखते हैं, सिमिलर केस एक और देखते हैं. अब X was Valentine's Day. Y was the day when salary gets paid. X वाले दिन क्या हुआ? Because it was Valentine's Day, these 6 circles were busy staring at these 6 squares. They had all come to work. हैं तो सब सिंगल, काम पे सब आए थे, बट 6 सर्कल्स 6 स्क्वायर्स को घूरते रह गए. उन्होंने काम ढंग से नहीं किया और 6 स्क्वायर्स वापस 6 सर्कल्स को घूरते रह गए. इस वजह से इन लोगों ने अपना आधा आधा टाइम वेस्ट कर दिया. When they waste half of their time, they are only able to produce half of their output. आधा आधा टाइम इन्होंने काम का वेस्ट कर दिया. Their efficiency from 1 iPhone per day goes to half iPhone per day. When 6 people waste half of their time, how many iPhones they produce? 3. 4 लोग गधों की तरह ढंग से काम कर रहे हैं, कितने और आईफोन बने? 4. Total iPhones made by 7. 6 squares are wasting half their time. So how many mountain bikes they produce? 6 into half, मतलब 3. 4 ढंग से काम कर रहे हैं. How many are they producing? 4. So in case of X, 7 iPhones, 7 mountain bikes are produced. In case of Y, इस दिन salary got paid. जैसे ही salary आई, these 4 circles chose to get drunk and these 4 squares chose to smoke weed. क्योंकि सैलरी मिल गई थी. उसी दिन सैलरी आई, these 4 squares decided to smoke weed, 4 circles decided to get drunk. Now the moment they got drunk, their time wasting started and they are only able to produce at half efficiency. कितने आईफोन बने? 6 लोग ढंग से काम कर रहे हैं, 4 are drunk, so they will only make half per day. Number of iPhones made is 8. सर्कल्स में 4 लोग काम नहीं कर रहे थे, स्क्वायर्स में भी 4 लोग काम नहीं कर रहे थे. स्क्वायर्स में 6 लोग आर वर्किंग प्रॉपर्ली. हाउ मेनी माउंटेन बाइक? 6. 4 squares are smoking weed. So 4 into 0.5 equal to 2. So why on the day of salary 8,8 get made?
So x is 7,7, y is 8,8. On both these points, what is happening? Wastage of time, non-efficient work. But still you can see point y is closer to PPC. So point y is better. Point x is further inside. Right? Wastage and non-efficient work was happening. इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला? Write this down. Closer to the PPC, where as close I am to the PPC, the economy or the firm या पूजा's firm जिसकी भी हम बात कर रहे हैं is closer to its full potential. Potential of production is what? 10,10. जितना पास हूं मैं पीपीसी के उतना पास हूं टू माय ओन पोटेंशियल. Closer to the PPC, the economy is closer to its full potential. To move closer to the PPC, if I have to go closer to the PPC, what are the two things I can do? I can increase the employment or usage of factors of production, or I can increase the efficiency, meaning I can stop the wastage of time. ये लाइन आप प्लीज लिख लो. आप याद करो, केस एक्स में ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे, वाई में कम अनएम्प्लॉयड थे. वी आर मूविंग क्लोजर टू पीपीसी. केस एक्स में ज्यादा लोगों ने ताड़ने का काम करना था बिकॉज इट वॉज वैलेंटाइंस डे. वाई में वीड फूक रहा था तो उतना लोग इन्वॉल्व नहीं थे. सो टू मूव क्लोजर टू द पीपीसी आई कैन ईदर इंक्रीज माई एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज माई एफिशिएंसी. ये बात क्लियर हुई? लिख लिया? ठीक है. मोस्ट पीपल आर मैसेजिंग डन. गुड. ठीक है. अब when we operate inside the PPC, हम ये पॉइंट्स देख रहे थे ऐसे. when we operate inside the PPC, either there is lack of full employment of resources. Employment of resources means usage of factors of production. यहां पर हम कौन सा factor of production देख रहे थे? Factor of production of labor we were seeing. तो कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के अंदर था, दो ही रीजन पॉसिबल थे. या तो लैक ऑफ फुल यूजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, और बोथ. ये भी हो सकता है कि दोनों चीजें हो रही हो. दो लोग काम पे आए नहीं, दो लोग एक दूसरे को ताड़ रहे हैं, तो काम कम हो जाएगा. सो व्हेन वी आर इनसाइड द पीपीसी, either there is lack of full employment of resources or lack of efficiency of resources, or both. And to move from a point inside the PPC closer to the PPC, either I can increase employment or increase efficiency, or both. ये लाइनें भी लिख लो. Although you have already written this, ये आप already लिख चुके हो, but still I want ये reinforce हो जाए. ये लाइनें एक बार दोबारा लिख लो. It is the similar thing we have written, but I still want you to write it down. आपकी मेमोरी में अच्छे से इंग्रेन होगा. ओके, डन. वैसे लिख चुके थे हम पहले भी ये सेम चीजें, है ना? चलो अब देखते हैं केस नंबर 8. केस नंबर 8 ने पूजा ने कहा भाई मुझे चाहिए ज्यादा प्रॉफिट. आई वॉन्ट मोर प्रोडक्शन. आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड माई पोटेंशियल. होगा मेरा पोटेंशियल 10 आईफोन और 10 मोटर बाइक्स बनाने का, मुझे 11 आईफोन और 11 मोटर बाइक्स बनानी है. पूजा सेज नाउ आई वॉन्ट मोर प्रॉफिट, मोर प्रोडक्शन, और काम करो. उसने सबको कौड़े मार के भी देख लिया, बट 10,10 से प्रोडक्शन आगे नहीं गई, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व. इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते. नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग पूजा हियर? व्हाट इज द रीजन दैट शी कैन नॉट गो बियॉन्ड पीपीसी? बिकॉज देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज.
देयर इज लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो पीपीसी के बियॉन्ड नहीं जा पा रही, राइट? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थी। तो अब लेकिन पूजा ने ठान लिया है कि मुझे 11,11 बनाना है। आई हैव टू मेक 11 आईफोन्स एंड 11 माउंटेन बाइक्स। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू पूजा? फर्स्ट, she can hire more people. She hires one more circle and one more square, maybe from the same college. One more circle and one more square. Now there are total 11 circles and there are total 11 squares. If they work at maximum capacity, I will be able to make 11 iPhones and I will be able to make 11 mountain bikes. मैंने एक स्क्वायर और हायर कर लिया, मैंने एक सर्कल और हायर कर लिया. This is what has Pooja done here? Pooja has increased the quantity of her factor of production, which was labor. Earlier, the quantity of her factor of production was 10 circles and 10 squares. Now it is 11 circles and 11 squares. With 11 circles and 11 squares, she can produce at point 8 beyond the PPC. So write this line down. To move beyond the PPC, one option is to increase the quantity of resources also known as factors of production. Write this down. जब हो जाए तो डन बोल देना. जब हो जाए तो डन बोल देना. वन ऑप्शन इज दिस, टू मूव बियॉन्ड द पीपीसी. पीपीसी क्या था? उसका मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. उसके बियॉन्ड जाने का एक ऑप्शन था, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. दूसरा ऑप्शन, पूजा कहती मैं नहीं दे रही किसी को और सैलरी, मैं नहीं ला रही दो और लोग. वैसे ही स्क्वायर्स और सर्कल्स का आपस में आजकल काफी इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो औरों को लाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. पूजा स्टिल वांट्स टू प्रोड्यूस एट 11,11.8, बट शी सेज आई विल नॉट गेट एनी न्यू पीपल. ये आपस में बहुत बात करते हैं. तो पूजा ने डिसाइड किया कि इनके सारे एम्प्लॉयज को वो सारथी आईएएस भेजेंगी. सारथी आईएएस आके सारे एम्प्लॉयज ज्यादा स्किल्ड हो गए. सो शी मेक्स हर एम्प्लॉयज मोर स्किल्ड. Earlier, their skill was that you make one iPhone per day if you are a circle. When you learn at Sarthi IS, you make 1.1 iPhone per day. तो कितने iPhones बनेंगे अब? Only 10 iPhones are there. 10 circles are there, but they can make 11 iPhones per day because their skill level has increased. There were 10 squares, but their skill level has become better. They can now make 11 mountain bikes combined. 1.1 बना सकते हैं अब वो, right? So now she has again operated beyond the PPC, but she has not hired anyone more. What has she done here? पूजा ने यहां क्या किया? पूजा ने इंक्रीज किया क्वालिटी ऑफ हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर. Quality of labor has been increased. So now write this line down. To move beyond the PPC, another option is to increase the quality of resources. Resources मतलब factors of production. ये लाइन लिख लो, जब हो जाए तो डन लिख देना. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, चलो. अब पूजा ने कहा ना ही मैं इनको एक और हायर करूंगी, ना ही मैं इनकी एजुकेशन पे स्पेंड करूंगी, मैं स्पेंड करूंगी टेक्नोलॉजी पे. तो पूजा ने कहा मुझे ऑपरेट तो करना है एट पॉइंट 8 बियॉन्ड द पीपीसी. व्हाट डिड पूजा डू? पूजा डिसाइडेड दैट आई विल इन्फ्यूज सम न्यू टेक्नोलॉजी इनटू माय कंपनी that will automatically make them more productive.
So using this new technology with the same labor that she had earlier, labor same था, लेबर सेम था, 10 सर्कल थे, 10 स्क्वायर थे, लेबर वाज द सेम. She said, I will infuse new technology and this same labor plus new technology will be able to produce 11,11. So one more option of moving beyond the PPC is to move beyond the PPC. One more option is to increase the technological level in the economy. थोड़ी सी ऑटोमेशन करवा दी पूजा ने. Because of this automation, now people who were earlier combined producing 10 iPhones are now producing 11 iPhones. So one more option is to increase the technological level in the economy. ये लिख लो. Write this line. Okay, great. अब देखो. When Pooja started producing at this point, at point 8, which was 11,11, it is not only that this point would have moved out. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ होगा. यहां पर प्रोडक्शन से यहां पर प्रोडक्शन पहुंच गई होगी, यहां पर प्रोडक्शन से यहां पर प्रोडक्शन पहुंच गई, यहां पर प्रोडक्शन से यहां पर प्रोडक्शन पहुंच गई, यहां पर प्रोडक्शन से यहां पर प्रोडक्शन पहुंच गई. So what has Pooja effectively done? She has moved her production possibilities curve outward. Her now maximum possibility of production is 22 items. Earlier it was 20 items. So she has moved this outward. So to move the PPC outwards, to go beyond the PPC, this is her new production possibilities curve. When she has hired the new people or made them more skilled or gotten the automation in the economy, now this is the level at which she can produce. उसका production का level नया हो गया है. ये नया production possibilities curve was possible because of either quality of factors of production, quantity of factors of production or state of technology. इन तीनों चीजों के थ्रू she was able to increase her production maximum potential. जो उसका maximum potential था उसके beyond उसने अपना curve increase कर लिया है. क्लियर? ये बात आप ऑलरेडी लिख चुके हो. You have already written these 3 things down. अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की. ये पीपीसी हमने कल देखा था. वी हैड सीन दिस पीपीसी टुडे, yesterday. This PPC is a PPC of a random company called, चैट में सबसे रिसेंट मैसेज किसका है? रिसेंट मैसेज सबसे नीलेश. दिस इज नीलेश की कंपनी का पीपीसी. नीलेश की कंपनी बनाती है या तो माइक्रोवेव अवन या कंप्यूटर्स. ओके, या तो माइक्रोवेव अवन बनाती है या कंप्यूटर बनाती है. दिस इज देयर पीपीसी. पॉइंट ए पे 40 माइक्रोवेव अवन 0 कंप्यूटर, पॉइंट बी पे 35 माइक्रोवेव अवन 17 कंप्यूटर, पॉइंट सी पे 26 माइक्रोवेव अवन 25 कंप्यूटर, पॉइंट डी पे 15 माइक्रोवेव अवन 31 कंप्यूटर, पॉइंट ई पे 0 माइक्रोवेव अवन 33 कंप्यूटर. अब हम नीलेश की कंपनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं ऑन दिस लाइन. पीपीसी की लाइन पर ही क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है नीलेश को. अगर पॉइंट ए पे ऑपरेट किया नीलेश ने, 40 माइक्रोवेव अवन 0 कंप्यूटर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. ए से नीलेश गया पॉइंट बी पे, कंप्यूटर्स बढ़ गए 17. इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नो, ये तो उसको बेनिफिट हो रहा है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या जा रही है? -5 कंप्यूटर्स हो गए, -5 माइक्रोवेव अवन्स हो गए. सो गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 5 माइक्रोवेव अवन्स. Then he goes from point B to point C on his production possibilities curve. Computers बढ़ गए. Is this the opportunity cost? No. Microwave ovens कम हो गए. This is the opportunity cost. -9 microwave ovens happened. So from B to C, opportunity cost is 9 microwave ovens. C to D, यहां से यहां गया,
Computers बढ़ गए. Is this the opportunity cost? No. But here microwave ovens got low from 26 to 15, so minus 11. C to D opportunity cost is 11 microwave ovens. D to E computers 2 से बढ़ गए. Is this opportunity cost? No. Microwave ovens 15 से हो गए 0, minus 15. Opportunity cost is 15 microwave ovens. A, B, C, D, E. अब यहां पर opportunity cost कैलकुलेट करना पॉइंट नहीं था. पॉइंट क्या था? At any point on this line from A to E, at any point on this line, is it possible to move without having zero opportunity cost? Zero opportunity cost पे इस लाइन पे मूव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ और बनाने के लिए. So write this down. On the PPC, all resources, all factors of production are fully employed with maximum efficiency. पूजा के केस में याद करो, पीपीसी पे क्या हो रहा था? 20 के 20 लोग काम कर रहे हैं. अब अगर मुझे 10,10 से 15,0 पे जाना है तो मुझे 10 लोगों को बोलना पड़ेगा भैया आईफोन मत बनाओ, मोटर बाइक्स बनाओ. तो दे विल हैव टू गिव अप सम आईफोन्स. पीपीसी पे मूव करना पॉसिबल नहीं है विदाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. On the PPC, all resources are fully employed with maximum efficiency. On the PPC, any movement along this line will involve an opportunity cost. On the PPC, output of one good or service will have to be given up in order to produce the other good or service. Write these lines down. Write these lines down. Now let us address the point of wastage. वेस्टेज वाला पॉइंट एड्रेस करते हैं ऑन द पीपीसी. दिस वाज द पीपीसी. ऑन पॉइंट 2, ऑन पॉइंट 4, ऑन पॉइंट 1, ऑन पॉइंट 5, ऑन पॉइंट 3, all squares and circles are coming to work. That means they are fully employed. All squares and circles are working at their full capacity. That means they are efficient. What is being wasted here is expertise. Expertise is being wasted. Expertise is being said that despite being an expert in making iPhones, you are being made to make a mountain bike. But कभी कभी ऐसा हो जाता है. पूजा को पता चला कि पहले आईफोन्स की कॉस्ट थी ₹1,00,000 पर आइटम. माउंटेन बाइक्स की भी कॉस्ट थी ₹1,00,000 पर आइटम. पूजा ने कहा ऑपरेट एट पॉइंट 1. 10 into 1,00,000 is 10 lakh. 10 into 1,00,000 is 10 lakh. I will make 20 lakh rupees. पूजा is rich and takes a tour to Dubai. ठीक है. अब क्या हुआ सडनली कि माउंटेन बाइक की कॉस्ट हो गई 100 लाख रुपीस, यानी कि 1 करोड़ रुपीस. अब पूजा ने कहा भैया सब छोड़ो आईफोन बनाना. आई डोंट गिव अ डैम अबाउट योर एक्सपर्टीज. एवरीबडी विल मेक माउंटेन बाइक्स because I will now get 15 mountain bikes, meaning 15 crore rupees. Pooja buys a Lamborghini and an Aston Martin. Expertise can be wasted, but at any points on this line, there is full employment and full capacity पे work. लोगों की capacity ही कम है, that is a different story.
सर्कल्स माउंटेन बाइक्स नहीं बना सकते, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ओनली थिंग दैट इज वेस्टेज इज एक्सपर्टीज, एंड समटाइम्स दिस माइट बी वेस्टेड डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस. नाउ आगे चलते हैं. ये सब हमने देख लिया है. अब देखते हैं, वापस हम आते हैं नीलेश की कंपनी पे. नीलेश की कंपनी में एक दिन हो रही थी बहुत ही भयंकर वेस्टेज. भयंकर वेस्टेज हो रही थी, लोग काम पे नहीं आ रहे थे, काम नहीं कर रहे थे. नीलेश की कंपनी वॉज ऑपरेटिंग एट पॉइंट एफ. एट पॉइंट एफ माइक्रोवेव ovens were being produced 15, computers being produced were 12. नीलेश ने क्या किया, जितने लोग डेट पे गए हुए थे वहां पहुंच गया डंडे लेके कि चलो काम पे चलो, आज सब काम करेंगे. नीलेश डंडे लेके पहुंच गया वैलेंटाइंस डे पे, डेट्स वाले दिन, और कहा सब काम करेंगे. सडनली द इकोनॉमी, सडनली हिज फर्म मूव्ड फ्रॉम एफ टू डी. एट पॉइंट एफ he was producing 15 microwave ovens and 12 computers. He moved to point D. How many computers and how many microwave ovens did he give up? He did not give up anything. Microwave रहे same, computers बढ़ गए. So what is it that he gave up? What did he give up from F to D? यहां पर give up क्या किया उसने? बस अपनी इज्जत, क्योंकि वो डंडे लेके पहुंच गया वैलेंटाइंस डे वाले दिन, सिर्फ अपनी इज्जत गिव अप करी. बट नो प्रोडक्टिव आउटपुट वॉज गिवन अप. 15 कंप्यूटर थे, 15 माइक्रोवेव ओवन थे, अभी भी 15 है. 12 कंप्यूटर थे, अब 31 है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एफ टू डी वॉज 0. if he would have gone from F to C, from point F to point C, if we would have gone, what would have been his opportunity cost? 15 कंप्यूटर थे, अब हो गए 26 कंप्यूटर, मतलब +11. 12 कंप्यूटर थे, अब हो गए 25 कंप्यूटर, मतलब +13. कुछ नेगेटिव हुआ ही नहीं. तो इवन फ्रॉम F to C the opportunity cost was 0. So now he did not give up anything. From F to D he did not give up anything. From F to C he did not give up anything. So अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? It is possible to move from a point inside the PPC to the PPC with 0 opportunity cost. Write this line down. जब ब्रेक लेंगे मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा. ये वाली आप लिख लो, जो 3 स्टेटमेंट वाली स्लाइड आपकी मिस हो गई है. मैं लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा यार आपको. हमने अभी देखा, इट इज पॉसिबल टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी टू द पीपीसी विद 0 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अदर देन इज्जत. नाउ चलिए, अब लगाना है थोड़ा सा दिमाग. चैट बंद करके दिमाग लगाने पे फोकस करना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर विच विल हेल्प यू आंसर अ मेंस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट में अब हम एक मेंस का आंसर लिखने वाले हैं. अगर आपने अभी थोड़ा दिमाग लगा लिया तो बस, इट इज ऑल कंटिंजेंट ऑन दिस मोमेंट. जितनी बार मैंने पीपीसी बोला, इट वॉज ऑल फॉर दिस मोमेंट. तो अब प्लीज प्लीज चैट बंद करके मेरी बात सुन लो प्लीज. There are 4 factors of production in any real economy: land, labor, capital, entrepreneurship. These are the 4 factors of production. Right now we were seeing the PPC as per only one factor of production, which was labor. But even if I extrapolate this to
दी एक्चुअल इकोनॉमी। अगर मैं इकोनॉमी पे भी इस लॉजिक को लगाऊं तो भी सेम ही लॉजिक है। वहां पर क्या था, 20 पीपल वर देयर, सो लेबर वॉज लिमिटेड। बट इन इंडियन इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल, लैंड इज लिमिटेड, natural resources are limited, people are limited, capital is limited, tools and technologies are limited, entrepreneurship and risk taking ability is limited. तो जो लॉजिक मैंने पूजा के लिए लगाया है, सेम लॉजिक आई कैन यूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो एंड कंस्ट्रक्ट अ पीपीसी फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया का जब मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व बनाऊंगा तब मैं क्या लिखूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज इंडिया प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ गुड्स, इंडिया प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ सर्विसेज। ये गुड्स और सर्विसेज का जब मैं कंपैरिजन बनाऊंगा तो आई कैन मेक अ सिमिलर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व फॉर इंडिया। दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व विल शो व्हाट, द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस, मैक्सिमम पोटेंशियल, इसके बियॉन्ड इंडिया अभी नहीं जा सकता। क्यों? बिकॉज द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल स्केयर्स। जैसे पूजा बियॉन्ड नहीं जा सकती थी बिकॉज ऑफ स्केयर्स लेबर, इंडिया कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन बिकॉज ऑफ स्केयर्सिटी ऑफ दीज 4 फैक्टर्स। सेम लॉजिक मैंने पीपीसी का इंडिया पे लगा दिया। लाइक पूजा वॉज ऑपरेटिंग हेयर, till her labor was limited, she could not go beyond. India can maximally operate on this line. If India has to go beyond this line, we have to either increase the quality or quantity of land, either increase quality and quantity of labor, either increase quantity or quality of capital, either increase quantity or quality of entrepreneurship. तभी मैं इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के बियॉन्ड जा पाऊंगा। ओनली देन, बिकॉज इट इज द सेम लॉजिक। अब इससे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर, वी हैव थिंग्स लाइक स्किल इंडिया मिशन। टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वी आर डूइंग स्टार्टअप इंडिया मिशन। To increase the quantity and quality of capital, tools, technologies, we are doing things like digital India mission, ताकि हम अपने पोटेंशियल से ऊपर उठ सकें। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं टू दिस लॉजिक ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। आई कैन नॉट मूव बियॉन्ड दिस लाइन till my 4 factors of production are fixed. Like in Pooja's case, my 4 factors of production में I was just showing labor. Labor was fixed. इंडियन इकोनॉमी के लिए these 4 factors of production are fixed. Now, is India operating at its PPC? No, because obviously in India, not all these 4 factors are fully employed and most efficiently employed. Some of these factors are sitting behind the camera and not contributing economically at all. Like you are also India's labor, but you are not economically contributing. So India is not operating currently at its maximum potential. India is, let's say, operating at a point X, where India is producing $1 billion worth of goods, $1 billion worth of services. ये बहुत कम है इंडिया के लिए. This is just an example. Now, अब सुनते रहना and समझते रहना. If India is operating at a point here, point X, let's say India is generating $1 billion worth of goods, $1 billion worth of services. हमने क्या देखा था? On the PPC, all factors of production are fully employed and there is maximum efficiency. Inside PPC, factors of production are not used fully and not used with maximum efficiency. If India is operating inside the PPC, if India is operating inside the PPC, what does it mean? India currently is not using all of its factors of production fully. India is not using all of its factors of production with maximum efficiency. जब लोगों को काम करना चाहिए, वो एक दूसरे को ताड़ रहे हैं इंडिया में, राइट? वो चैट स्पैम कर रहे हैं, कई लोग छुट्टी पे हैं, क्लास नहीं आ रहे हैं,
right? This is happening. So India is currently operating inside this production possibilities curve. ये कंक्लूजन हम ऑलरेडी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. नाउ लेट अस कंसीडर द केस ऑफ 3 पॉइंट्स. अब ये स्लाइड प्लीज ध्यान से देखना. पॉइंट एक्स, इंडिया प्रोड्यूसेस $1 billion वर्थ ऑफ गुड्स, $1 billion वर्थ ऑफ सर्विसेज. टू मूव फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, बस इतना देखो. अभी India is moving from point X to point Y. India is moving closer to its production possibility curve. From $1 billion, it is now producing $2 billion of good. It is now producing $2 billion of services. To move from point X to point Y, to move from inside the PPC to closer to the PPC, you have already written this. India को क्या चाहिए? या तो अपना use of resources बढ़ाए या अपनी efficiency बढ़ाए. At point X, India produces 1 billion in goods, 1 billion in services. To move to point Y, which is closer to India's PPC, India needs to either increase its use of resources or increase its efficiency. X to Y, ये हमने देखा था. Closer to the PPC जाने के लिए क्या चाहिए? Efficiency बढ़ानी पड़ेगी या फिर मुझे अपने use of resources बढ़ाने पड़ेंगे. Full utilization और full efficiency एट द पीपीसी. तो मुझे अपना एफिशिएंसी और ये बढ़ाना पड़ेगा. ये एक्स और वाई पॉइंट्स हम पूजा के केस में देख चुके हैं. एग्जैक्ट सेम इंडिया पे अप्लाई कर रहे हैं हम. राइट नाउ इन दिस ग्राफ व्हाट इज पॉइंट ए? पॉइंट ए लाइज ऑन द पीपीसी with the current levels of India's factors of production. If factors of production levels are fixed, point A is the maximum that India can produce. Without increasing quality and quantity of factors of production, India will be stuck maximum at point A. So point A becomes potential of India, maximum potential that India can reach. पॉइंट एक्स मान लो हमारा करंट स्टेट है. पॉइंट वाई पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है? यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी. पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए क्या करना है? मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा. मैक्सिमम जब यूटिलाइजेशन हो जाएगी, मैक्सिमम जब एफिशिएंसी हो जाएगी, तो मैं पॉइंट ए पे पहुंचूंगा. इसके बियॉन्ड अभी नहीं जा सकता. नाउ सेम केस हम देख चुके हैं पूजा में. इट इज द सेम लॉजिक. इज दिस मच क्लियर? क्या ये यहां तक समझ आ रही है बात? इवन रिमोटली भी समझ आ रही है तो काम चल जाएगा. इज दिस मच क्लियर सो फार? थोड़े दिमाग के चक्षु खुल रहे हैं, थोड़ा समझ आ रहा है इकोनॉमी में होता क्या है. ठीक है, आगे देखो. अब इंडिया चाहता है कि इंडिया अपना मैक्सिमम पोटेंशियल इंक्रीज कर ले. इंडिया का मैक्सिमम पोटेंशियल अभी पॉइंट ए था. इंडिया का मैक्सिमम पोटेंशियल अभी पॉइंट ए था. इंडिया चाहता है हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट बी हो जाए. जब हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट बी हो जाएगा, उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? हम देख चुके हैं ये आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपीसी. पूजा को 10 की जगह 11 आईफोन बनाने पड़ेंगे, 10 की जगह 11 मोटर बाइक्स बनानी पड़ेंगी. देयर वर 3 थिंग्स दैट शी कुड हैव डन. सो इंडिया टू मूव इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल आउटवर्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल बढ़ाने के लिए इंडिया को या तो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, या क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करनी पड़ेंगी. या तो इंडिया क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाए, या तो इंडिया क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाए, या इंडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करे. तभी हम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपीसी करा सकते हैं. सेम लाइक पूजा. पूजा को यह काम कराने के लिए क्या करना पड़ा था? या तो लोग हायर किए, या उनको स्किल किया, या नई टेक्नोलॉजी लाई. सेम यहां पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तभी ये आउटवर्ड मूवमेंट होगा. इंडिया का मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचेगा. नाउ अब ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम सब पढ़ चुके हैं स्लाइड में ऑलरेडी. दिस कम्स, एवरीथिंग कम्स टुगेदर हियर. इंडिया इज करंटली एट पॉइंट एक्स. टू रीच पॉइंट वाई,
India is currently at point X. This is India's current PPC. Current PPC is white line. ध्यान से सुनना. India's current PPC is its white line. India is currently at point X. To move from point X to point Y, what does India need to do? India needs to increase its employment of factors of production. India needs to increase its efficiency of use of factors of production. X to Y पहुंचने में, क्लोजर टू करंट पीपीसी पहुंचने में, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन इफ इंडिया वांट्स टू रीच फ्रॉम Y टू Z, Y टू Z अगर इंडिया पहुंचना चाहता है, इफ इंडिया वांट्स टू ट्रेवर्स दिस जर्नी फ्रॉम Y टू Z, इंडिया विल फर्स्ट हैव टू मूव आउट इट्स पोटेंशियल. नहीं तो ये कभी होगा ही नहीं. इंडिया को पहले अपना मैक्सिमम पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, अपना पीपीसी आउटवर्ड मूव कराना पड़ेगा. सो ओनली इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंसी इज नॉट इनफ टू टेक इंडिया फ्रॉम वाई टू जेड, बिकॉज जेड करंट पीपीसी के बाहर है. जेड इज आउटसाइड द करंट पीपीसी. तो जेड तक पहुंचने के लिए पहले पीपीसी को बाहर करना पड़ेगा, फिर जेड तक पहुंचा जा सकता है. So from Y to Z, only increasing employment and efficiency is not enough. Outward shift of PPC is needed. Outward shift of PPC will be there when there will be increased quality, increased quantity of factors of production, or increased technological levels. So if India only wants to reach from X to Y, तो efficiency और employment बढ़ के काम चल जाएगा. Efficiency of factors of production, use of factor of production. बट Y टू Z जाने के लिए क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी. तभी बात बनेगी, तभी ये बाहर मूव करेगा. राइट? दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड द एग्जैक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन मेंस 2020. मेंस 2020 के क्वेश्चन का आंसर लिखा है आपके सामने एट द मोमेंट. आपको दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन. नाउ इसी चीज को यहां पर दोबारा समझते हैं. इंडिया एट पॉइंट एक्स वॉज प्रोड्यूसिंग $1 billion ऑफ गुड, $1 billion ऑफ सर्विसेज, एंड पॉइंट वाई इंडिया इज प्रोड्यूसिंग $2 billion ऑफ गुड, $2 billion ऑफ सर्विसेज. फ्रॉम एक्स टू वाई इंडिया को क्या चाहिए? बढ़ाओ एफिशिएंसी, बढ़ाओ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पॉइंट जेड पे इंडिया इज प्रोड्यूसिंग $4 billion ऑफ गुड, $4 billion ऑफ सर्विसेज. Y टू Z पे इंडिया को क्या चाहिए? पहले इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एफिशिएंसी और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ानी ही पड़ेगी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम पोटेंशियल पहले बढ़ाना पड़ेगा. सो फ्रॉम X टू Y टू Z, इंडिया विल X टू Y में एफिशिएंसी एम्प्लॉयमेंट, Y टू Z में एफिशिएंसी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ानी ही है, बट पीपीसी को भी बाहर मूव करना है, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ानी है. नाउ व्हाट इज इंडियाज टोटल आउटपुट एट पॉइंट एक्स? ये आप चैट में बताओगे. एट पॉइंट एक्स इंडिया का टोटल आउटपुट क्या है? एट पॉइंट एक्स व्हाट इज इंडियाज टोटल आउटपुट? What is India's total output at point X? $2 billion. At point Y, it is $4 billion. At point Z, it is $8 billion. अब देखो, ये टर्म हम पढ़ते हैं, मैं आपको अभी जीडीपी पढ़ा नहीं रहा हूं. हम जीडीपी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. जीडीपी को मेजर कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक पूरा चैप्टर है. इट विल टेक अस 2 to 3 क्लासेस टू कवर ऑल ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. बट जो वर्ड जीडीपी हम पढ़ते हैं, मैं आपको वर्ड ब्रेकडाउन सिखा रहा हूं. हाउ यू ब्रेक डाउन द वर्ड्स. जब आपको उनका मतलब नहीं भी पता तो भी आप उनका मीनिंग कैसे निकाल सकते हो. ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल. डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर. प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई. दिस इज अ रॉ डेफिनेशन, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन.
मैं आपको एनआईए अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, हम पढ़ेंगे एनआईए डिटेल में, बट ग्रॉस टोटल ब्रॉडली डोमेस्टिक मतलब इनसाइड इंडिया, प्रोडक्ट मींस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। इन दिस केस एट पॉइंट एक्स इंडिया का जीडीपी क्या हुआ, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड क्या हुआ, 2 बिलियन। इस केस में क्या हुआ, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड 4 बिलियन। इस केस में क्या हुआ, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड 8 बिलियन। So, moving from point X to point Y by increasing employment and increasing efficiency of factors of production, moving to point Y to point Z using increased quality and quantity of factors of production, India is doing increase in its GDP. Meaning what? India is undergoing economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स जीडीपी बाय दीज फैक्टर्स, फुल यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फुल efficiency of factors of production, increase in quality and quantity of factors of production. Now, यही हम देख रहे थे, इंडिया का करंट पीपीसी ये है, this is India's current PPC. India is currently at point X, 1 billion goods, 1 billion services. India wants to go to point Y, 2 billion goods, 2 billion services. What is point A here? Point A is on India's current PPC. A is on current PPC. At current PPC, what does it mean? At current PPC, it means it is the maximum that India can produce with full efficiency and full employment. Without increasing quality and quantity of factors of production, India can maximum produce A. The maximum production of A, ye, is the maximum potential that India has, also known as India's potential GDP. India has the potential to produce at point A, because if India does full efficiency and full employment of its factors of production, India has potential to produce at point A. That is India's potential GDP. अभी इंडिया की जीडीपी कितनी है, एक्स पे 2, वाई पे कितनी होगी 4, पोटेंशियल क्या है ए, कुड बी 3+3, कुड बी 6, और 6 के बियॉन्ड जाने तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वन वे टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पाकिस्तान को इन्वेड करके सारा लैंड अंदर ले लो, इंडिया का लैंड की क्वांटिटी बढ़ गई, पोटेंशियल बढ़ जाएगा. दिस इज एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नाउ देखो, this we have already seen. If India wants to do its outward shift of PPC, India's maximum potential will increase. How this will happen? Increase in quality, increase in quantity, increase in technological advancements. Right? Outward shift होगा, maximum potential GDP बढ़ जाएगा. This we have seen. Now, write these lines down. GDP is the total output of the economy. Although हम GDP डिटेल में देखेंगे, अभी बस एक शुरू की अंडरस्टैंडिंग के लिए है. GDP is total output of the economy. Potential GDP is possible maximum output of the economy. Potential GDP is at production possibility curve. For increase in GDP, India requires efficiency and full employment of its factors of production to the PPC level. PPC लेवल तक पहुंचने के लिए, पोटेंशियल जीडीपी लेवल पहुंचने के लिए इंडिया को एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करना होगा. टू इंक्रीज इन पोटेंशियल जीडीपी बढ़ाने के लिए इंडिया को क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा. प्लीज राइट दिस डाउन.
लिख लिया तो डन लिख देना। ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाता हूं, जस्ट शोइंग यू वन थिंग, दिस इज योर टेस्ट। टेस्ट भूल जाते हैं अभी के लिए। ये क्वेश्चन देखो, दिस इज एक्चुअल यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन ऑफ 2020, अभी आया था रिसेंटली, 4 साल पहले। ऐसे ही नहीं मैंने इतना टाइम वेस्ट किया हमारा पोटेंशियल जीडीपी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व पढ़ते हुए। डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? Now, anyone, even your friends who are not preparing for UPSC can write this answer as a generic answer. Generic कोई भी लिख देगा कि अच्छा है, पोटेंशियल इंडिया का बहुत ज्यादा है, इंडिया अपने पोटेंशियल पे रह नहीं रहा। ये जेनेरिक आंसर कोई भी लिख सकता है। बट इफ यू मेक द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, शो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज मूवमेंट इस क्वेश्चन में, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि ये यही दिखाता है, इफ यू नो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, दिस इज व्हाट शोज एंड डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। एंड दैट वाज माय प्रॉमिस टू यू कि मैं आपको रटवा के ऊपर ऊपर से, आई कुड हैव जस्ट मेड यू मग अप द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, मेरे लिए बहुत आसान होता। बट हियर वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कंपटीशन। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए मेंस में, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल of production possibilities curve, show the movement from here to here, write what is needed here, write what is needed here, what factors have been inhibiting. जब ये हमें समझ आ जाएगा, then we will gain an edge over our competitors. This is what matters. अभी हमने जीडीपी पढ़ा नहीं है, इसलिए वी आर नॉट राइटिंग दिस आंसर। जब हम जीडीपी पढ़ लेंगे, देन वी विल राइट दिस आंसर एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये आंसर कैसे लिखा जाना था। अब है आप लोगों के लिए एक छोटा सा, एक्चुअली ये दो चीजें हम और पढ़ लेते हैं। वी विल जस्ट रीड दीज टू थिंग्स, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट दूंगा। देखो, थिंक अबाउट द टर्म ग्रोथ। हमने अभी ग्रोथ देखा कि जीडीपी को इंक्रीज करना है, टीपीसी लेवल तक इंक्रीज करना है तो एफिशिएंसी और एम्प्लॉयमेंट से हो जाएगा। बियॉन्ड पीपीसी इंक्रीज करना है तो मुझे इंक्रीज करना होगा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। I will have to increase the quality and quantity of factors of production if I have to go beyond PPC. एक और ऑप्शन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, राइट? हमने सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी वी रेड, ओवर टाइम देयर शुड नॉट बी any decrease in the quantity and quality of factors of production. यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में हमने पढ़ा कि ओवर टाइम देयर शुड नॉट बी एनी डिक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टू ग्रो बियॉन्ड पीपीसी आई नीड टू इंक्रीज माय क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ आई एम नॉट डूइंग दिस ग्रोथ, ये क्वांटिटी और क्वालिटी मैं अगर प्रॉपरली एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ना करूं, मैं ओवर यूज करने लग जाऊं, इफ देर इज एन ओवर यूज हेयर, मैं ध्यान ना रखूं, ओवर यूज करने लगूं, तो देर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तभी आपने पढ़ा होगा कि हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑलवेज इकोनॉमिक, इट इज सेड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ, environmental preservation and economic growth are always at a conflict, because economic growth demands use all factors of production. सबको यूज करो, सारे लैंड को यूज करो, सारा लेबर यूज करो, सब कुछ कैपिटल यूज करो। एनवायरमेंट डिमांड्स कि ओवर टाइम दिस डिक्लाइन शुड नॉट हैपन, देयरफॉर ग्रोथ
At any time when we have to do growth, growth must be managed in an environmental context and must be sustainable. Growth must always be sustainable. It should take care of the needs of the future generation. This is the idea of growth versus sustainability. Second concept, हमने अभी देखा है growth. For a country, we were seeing that growth was merely increase in the output. आउटपुट बढ़ा दिया तो ग्रोथ हो गई, जीडीपी बढ़ा दिया तो ग्रोथ हो गई. Increase in GDP, increase in output. This is merely what was growth. But was it any reflection on the welfare or quality of life of the citizen? हो सकता है ये सारी ग्रोथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो रही हो एंड सारे पैसे सिर्फ अंबानी जी को मिल रहे हो एंड बाकी एवरीवन इज पुअर, देयर इज इनइक्वालिटी, देयर इज पॉवर्टी, बट ग्रोथ हुए जा रही है. So we don't actually focus on growth. We focus on development. Development looks not only at growth, not only at GDP, but also education, health, social welfare, and takes a broad view of our social progress. Now, from these two terms, growth versus development and growth versus sustainability, you would have understood why there is a concept of sustainable development goals. That we have to do development, not merely growth, and we have to do it in a sustainable manner. In a sustainable manner, we have to ensure that our needs, when we are meeting our needs and wants, the needs and wants of the future generation are not compromised. There should not be any decrease in quantity or quality of factors of production over time. That is why this concept of sustainable development goals exists. Now, I hope ये terms का मतलब growth, development, sustainability, I hope these terms are clear. अगर clear हैं तो ready लिख दो chat में, क्योंकि अब आपका test है. If they are clear, please write ready and we will start the test. चलो जी. There is a test of 5 questions. The cutoff of this test is 5 out of 5. If you get even one question wrong, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, that means आपका नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं होगा. Even if you get one question wrong in this test, that means you will not be able to clear prelims. तो ध्यान से देखना, 5 out of 5 is cut off. एक गलती भी अलाउड नहीं है. पोल क्रिएट कर देना. अभी स्टार्ट मत करना. क्वेश्चन 1 स्टार्ट. पोल में जाके आंसर करना है. पोल्स देखोगे वहां पे आंसर दिखेगा आपको. आई थिंक थोड़ी सी हिंट की जरूरत है यहां पर. ये सीएपीएफ एग्जाम में पूछा था यूपीएससी ने 2021 में. Should be happy that within the first 2 classes we are able to solve UPSC level question. ठीक है, टाइम अप. टाइम अप. आंसर एंड में बताऊंगा सबके. ऑल्दो मैंने पोल में जो देखा, मोस्ट हैड गिवन राइट आंसर. क्वेश्चन 2, ये यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा इन द ईयर 2019.
ध्यान रखना, टेक केयर। सारे ऑप्शंस पढ़े बिना कृपया आंसर ना दें। ऑल्दो सिविल सर्विसेज में सच क्वेश्चंस आर रेयरली आस्क्ड। सिविल सर्विसेज में सच क्वेश्चंस आर रेयरली आस्क्ड, बट प्लीज विदाउट रीडिंग ऑल दी ऑप्शंस डोंट। अभी तक मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, बट कुछ महारथी भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, मोस्ट लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन 3, प्लीज रीड केयरफुली। केयरफुली रीड करें, कृपया केयरफुली रीड करके आंसर दें। मोस्ट पीपल हैव गिवन द राइट आंसर सो फार। क्लास में ही बोला था, ऐसी गलतियां मत करो। चलो पोल में आंसर देना प्लीज, चैट में नहीं। मोस्ट पीपल हैव गिवन द राइट आंसर। चलो टाइम अप। क्वेश्चन 4। अब ये देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लिखा है, इट इज द सेम एज पीपीसी, कोई फर्क नहीं है। अरे ये कैसे गलतियां कर रहे हो यार। सेम आंसर था पहले और इस क्वेश्चन का, इट इज द सेम क्वेश्चन। रीड इट। इसमें ट्रू पूछा है, इसमें गलत नहीं पूछा है। आई हैव सीन दैट, आई हैव नोटिस दैट जो जल्दी जवाब दे रहा है वो जनरली गलत दे रहा है। देर इज नो रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग क्विकली। देर इज नो रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग क्विकली। टेक योर टाइम एंड आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। ये किसी ने गलती की अगर, ये गलत मत कर देना यार प्लीज। यार ये गलत कैसे कर सकते हो तुम यार। प्लीज चारों ऑप्शन पढ़े बिना मार्क ना करें। At least 25 or 26 times I must have said the meaning of the word opportunity cost in the class. पोल्स वाले ऑप्शन में जाके आंसर दें, चैट में आंसर ना दें। चलो 95 लोगों ने सही जवाब दिया है, तो थोड़ा आई ऑल्सो फील गुड।
अब देखो, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पार्टिसिपेटिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एक्टिवली लिसनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. ठीक है, इवन इफ यू गॉट ऑल द क्वेश्चन रॉन्ग, इट्स ओके. जो शुरू में मैंने एक कट ऑफ की फिगर आपको बोली थी कि 5 आउट ऑफ 5 कट ऑफ है, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो प्रीलिम्स नहीं होगा, इट वॉज ओनली टू क्रिएट प्रेशर. इट इज ओनली टू क्रिएट प्रेशर, थोड़े ताकि आप पे प्रेशर बने, आपको डर लगे. देर इज नो अदर रीजन अदर देन दिस. देन मैं चाहता था कि आप बस ये 5 आउट ऑफ 5 के प्रेशर में रहो. ऑन द डे ऑफ योर एक्चुअल एग्जाम द प्रेशर ऑन यू विल बी मच मोर देन दिस. इससे कहीं ज्यादा प्रेशर होगा आप पे. बट इसलिए मैं चाहता हूं जो गलतियां करनी है यही कर लो. डू ऑल द मिस्टेक्स हेयर. यहां पर आप सारी गलत कर दोगे तो भी कोई बात नहीं. ठीक है, अब एक बार ये पांचों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. लेट मी शो यू द आंसर्स ऑफ ऑल 5 क्वेश्चंस. वैसे ये आपके मटेरियल में भी दिए हुए हैं. एंड देन आई विल गिव यू अ स्मॉल ब्रेक. ठीक है, अगर आप, मैं आपको बस दिखा रहा हूं, अगर आप दोबारा टेस्ट करना चाहते हो खुद को तो आपके मटेरियल में भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं. दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन द पीडीएफ दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है. यहां पर पीपीसी की भी सारी बातें जो हम पढ़ चुके हैं वो यहां पर हैं. ये रहे. नाउ दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कई लोगों ने नॉट नहीं पढ़ा. देखो, दिस इज व्हाट यूपीएससी डज एंड वी हैव टू बी केयरफुल. Which one of the following statements about production possibility frontier or production possibility curve is not correct? ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट. कैसा बनता है फ्लक्शन पीपीसी? ऐसा बनता है. क्या स्लोप है ये? डाउनवर्ड स्लोप टू द राइट. डाउनवर्ड टू द राइट. दिस इज करेक्ट. Different combinations of various goods and services given the available resources and technology are denoted by the PPF. ये बात भी सही है. We have learned this thing. Second statement एकदम सही है कि given resources पे, given technology पे PPF ये दिखाता है. थर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको पढ़ते हैं. Any point on or inside the PPC is attainable under the existing technology and resources. बिल्कुल, प्रैक्टिकली शायद अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो, बट इट इज पॉसिबली अटेनेबल कि यहां पर मैं कहीं पे यहां पे फंक्शन करूं या यहां पर फंक्शन करूं. पूजा 10 आईफोन्स 10 मोटर बाइक्स बना ले. राइट, इट इज पॉसिबल अंडर द करंट टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज. पॉइंट डी देखते हैं अब. चलो, इस पे हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं. जब ऐसे पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें और आपको आपको पॉइंट सी पे डाउट हुआ, कोई बात नहीं. लेट्स सी पॉइंट डी. On the production possibility frontier, the output of one commodity can be increased without changing the output of another commodity. क्या ये possible है? नहीं. We have read this. It is not possible to change the output of one commodity without changing the output of other commodity. ये तो हमने देखा ही था, आप याद करो. Remember this PPC that we have seen? I'll just show you. हमने जो पीपीसी ड्रॉ किए थे उसमें हमने ये चीज लिखी भी थी. वी हैव रिटन दिस. व्हेन वी आर सीइंग दिस, वी हैड रिटन इट डाउन आल्सो. ऑन द पीपीसी, आउटपुट ऑफ वन गुड और सर्विस विल हैव टू बी गिवन अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर गुड और सर्विस. ये एग्जांपल देखो, आउटपुट ऑफ वन गुड और सर्विस विल हैव टू चेंज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द अदर. तो क्या आंसर हुआ इस क्वेश्चन का? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग. On the PPF, it is not possible to increase output of one without changing the output of other. Second question, which of the following statements is not correct? अब ये हमने ग्राफ से देखा था. We have seen the graph of total utility and marginal utility. ऐसा total utility का ग्राफ था, ऐसा हमारा marginal utility का ग्राफ था. हमने वो एग्जाम्पल भी देखा था ऑफ स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम. देखते हैं. When total utility is maximum, marginal utility is zero. No. When total utility is, wait, when total utility is decreasing, marginal utility is negative. बिल्कुल.
total utility is increasing, marginal utility is positive. Yes. When total utility is maximum, marginal and average utility are equal to each other. हम ये चीज देख चुके हैं. We have seen this example already. हमने देखा था हमारे एग्जाम्पल में marginal utility, total utility और average utility. 4 scoops of ice cream. 16 was the total utility. 4 was the average utility. At that time, marginal utility was 1 या 0. But fourth statement is incorrect. When total utility was maximum, marginal and average were not equal to each other. Actually, it is very difficult for them to be equal to each other because marginal utility will decrease at a much faster rate. But if this question you don't understand, it is completely okay. ये चीजें यूपीएससी में जनरली नहीं पूछी जाती, जनरली नहीं पूछी जाती यूपीएससी में. आगे देखते हैं. In the context of a country, which one of the following would be part of its social capital? Capital का क्या मतलब है? Capital means future stream of benefits. What did we see? Society giving me future stream of benefits. How will society give me future stream of benefits? I will get future stream of benefits by relationships, by trust, so that later I can call in favors, I can obtain information. ये हमने देखा था. दैट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशल कैपिटल. हमने फिजिकल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल सब देखा था. अब लेट्स सी द ऑप्शंस. Proportion of literates in the population, has it got anything to do with relationships? No. Stock of buildings and infrastructure, has it got anything to do with relationships? No. Size of population in working age group, has it got anything to do with relationships? No. Level of mutual trust and harmony in the society, yes. If there was mutual trust and harmony, relationships would be better, people would be able to better interact with them. Answer was D. अब ये क्वेश्चन देखो. दिस क्वेश्चन इज इफेक्टिवली अ रिपीट ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2021. तभी हम पीवाईक्यूज करते हैं. सेम क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नाउ, अब ट्रू पूछ लिया. ट्रू with regard to an economy which is on its production possibility frontier. The economy on the PPF, on PPF matlab here the economy has to sacrifice some production of one commodity in order to increase the production of another commodity. Exactly यही आंसर था पिछले स्टेटमेंट का. याद करो, यहां पर आंसर ए है. लुक एट दिस ए स्टेटमेंट एंड लुक एट दिस डी स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट गलत थी. ये सेम स्टेटमेंट अब यूपीएससी ने सही करके दे दी. सो इट इज द रिपीट ऑफ द सेम क्वेश्चन. आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन. देयर इज नो लिमिट और कंस्ट्रेंट फॉर द इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. नहीं. इफ यू आर ऑन द पीपीसी देयर इज अ कंस्ट्रेंट. दिस कंस्ट्रेंट इज व्हाट वी कॉल्ड स्केर्सिटी. The economy can produce more of one commodity up to a point without reducing the production of other commodity. No, because you are on the PPC already. To produce another commodity, you will have to give up something. PPF is an upward sloping curve. No, it is a downward sloping curve. ये option भी पहले था. Same thing has been asked again. Now ये CAPF में 2 बार पूछा है. हो सकता है this comes in UPSC now. UPSC मेंस में आ चुका है. Last question. Which one of the following is opportunity cost of a chosen activity? Next best alternative, next best alternative, next best alternative. Clear? All right. I hope आपको थोड़ा सा मजा आया हो टेस्ट देके. I am giving you now a 5 minutes break. I am muting the mic on purpose for these 5 minutes. Mic is on mute on purpose. Then we will go for the next topic that we have to read today, which is law of demand. I hope थोड़ा मजा आ रहा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो अभी तक.
आई होप लिख लिया होगा, स्लाइड चेंज कर दूं? अच्छा ओके, वो वाली स्लाइड, 1 सेकेंड। ये ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट आपके नोट्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी। दैट इज ऑलरेडी रिटन, आपको वो दोबारा लिखने, ये भी लिखा हुआ है आपके नोट्स में, बट स्टिल यू कैन राइट। चैट पब्लिक कर दो थोड़ी देर, मैं भी देख लूं लोग क्या कह रहे हैं। सेटिंग्स एंड पब्लिक, प्राइवेट चैट, हाँ। थोड़ा मजा आ रहा है भाई, हैं? थोड़ा एंजॉय कर रहे हो? थोड़ा लग रहा है कुछ पढ़ा जा रहा है इकोनॉमी वगैरह? आई होप इट इज फन फॉर यू ऑल्सो। मेरे को तो काफी मजा आ रहा है। आई नो वी आर गोइंग स्लो, बट यार आई लुक टायर्ड बिकॉज आई टोल्ड यू ना, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। आई कैन सी द टॉन्सिलाइटिस। प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन यू आर अ डॉक्टर आप खुद को डायग्नोज कर लेते हो। तो मैं ऐसे मिरर में देख रहा हूँ तो मुझे अपने टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड दिख रहे हैं। आई हैव अ थ्रोट प्रॉब्लम, आई फॉरगेट दिस व्हेन आई एम टीचिंग। मैं बीच में चीखने लग जाता हूँ। दिस विल कम बैक टू मी एंड हॉन्ट मी इन द नेक्स्ट क्लास। Ayushi is saying, being unemployed at 25, I can't help but feel envious of Pooja's success as an entrepreneur. And no offense to Pooja, this was just an example. ठीक है, चलो अब इसको प्राइवेट कर दिया जाए फिर से प्लीज। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे। We have done this. Now we are going to read this. Next topic that we have to read today is law of demand. Now law of demand is fairly easy to understand. अब बस प्लीज चैट बंद है ना, फोकस। 1 घंटा और पढ़ाई करेंगे, फिर आज मेरे को आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद करानी है, आपको रिवाइज भी करना है, बहुत काम है। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। सो फार हमने क्या क्या पढ़ लिया है?
हमने स्केर्सिटी पढ़ लिया है, एफिशिएंसी पढ़ लिया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया है, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया है, हमने चॉइस पढ़ लिया है, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी हैव रेड, two ways to answer this basic economic problem we have read. In these two ways we have also read the economics ka basics and planned economics ka basics, although we will read a lot more about this when we read about India's LPG reforms. Now we are going to read something called law of demand. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं. अब प्लीज चैट बंद, फोकस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. देखो, पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिमांड. डिमांड का क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड. दोबारा पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को. क्वांटिटी ऑफ अ गुड, गुड मतलब ऑफ कोर्स गुड एंड सर्विस बोथ. क्वांटिटी ऑफ अ गुड, कितना आप विलिंग हो और एबल हो टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड. ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, समझना, थोड़ा मेरी तरफ देखना और समझना, नोट्स में है ऑलरेडी. Quantity of a good that consumers are willing and able to purchase at a given price in a given period of time. This is law of demand. Now, एक क्वेश्चन पूछता हूं. Let us look at the demand of Lamborghini cars. Let's say Lamborghini Aventador. इस कार की बात करते हैं. All of us have a demand of a Lamborghini car. True or false? हम सबको Lamborghini कार चाहिए. All of us demand a Lamborghini car. True or false? Let me see what you are writing. Assuming कि हम सबको गाड़ियां पसंद हैं. Don't give me that reason. Assuming we all like cars. Assuming we all like cars. देखो, if you are saying true, इसका मतलब हमने डेफिनेशन ध्यान से नहीं सुनी. हम रील्स देख रहे थे डेफिनेशन पे. ट्रू इज नॉट द करेक्ट आंसर हियर. I might want a Lamborghini car. I might desire a Lamborghini car. But am I both willing and able? Willingness तो है Lamborghini कार लेने की, बट क्या ability है to purchase a Lamborghini car? अब आप में से कई लोग होंगे जिनके पास 4 करोड़ रुपए हैं एक गाड़ी पे खर्च करने के लिए. But for most of us, we are not able to purchase a Lamborghini car. We might be willing. We might have a desire. We might have a desire for a Lamborghini car. But are we demanding a Lamborghini car? No, because we are willing but not able. हमारी ability के सामने ये 3 letters हैं अगर हमें Lamborghini showroom में जाना पड़े. Right? We might have a desire for a Lamborghini, but our ability is only that to buy a desire. Lamborghini की ability नहीं है. So we don't actually have a demand. Want and desire is not the same as demand. Demand has two things. Definition में 2 चीजें थी. Willingness and ability. Willingness and ability. We might have willingness, but till we don't have ability, we don't have demand. अब demand की definition दोबारा देखो. Quantity of a good that consumers are willing and able to purchase at a given price in a given period of time. In the case of Lamborghini, given price is 4 crore rupees. So we might all be willing, but none of us are able to purchase a Lamborghini. So we are not demanding a Lamborghini.
Now, let's talk of demand for ice cream. Now, all of us have the willingness and ability to purchase ice cream. अब हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं. All of us have the willingness and ability to purchase ice cream. Now assume that there is infinite supply of ice cream. दुनिया में सप्लाई की कोई कमी नहीं है. सप्लाई को छोड़ देना. What are the factors? अब आपको बताना है मुझे. What are the factors on which the demand for an ice cream depends? Demand of ice cream depends on what factors? क्या लगता है आपको? ठीक है, आपने कहा प्राइस, मूड, सीजन, और बताओ. सारा सही बता रहे हो अभी तक. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है. वेदर, फ्लेवर छोड़ दो. फ्लेवर मान लो इट इज ओके, जस्ट से डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. फॉरगेट फ्लेवर एंड ब्रांड. स्ट्रॉबेरी, लेट्स से बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम. फ्लेवर और ब्रांड छोड़ दो अभी के लिए. और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. What else? What else can affect my demand? परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर को मैं लिख देता हूं इनकम. What else? Price of some other goods. For example, let's say price of brownies. अगर ब्राउनीज सस्ती मिल रही होंगी तो शायद हम उतनी आइसक्रीम ना खरीदें. What else? आपकी हेल्थ कॉन्शियसनेस और फ्लेवर यहां पर आ गया प्रेफरेंसेस में. आपकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं. What else? क्वालिटी. ओके, फेयर इनफ. बट क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम इज एक्चुअली अ सप्लाई साइड फैक्टर. ठीक है, ब्रॉडली आपने सही जवाब दिया है. अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं. सीजन, ये आपने बोला. क्वालिटी आपने बोला. प्राइस आपने बोला. टेस्ट आपने बोला. प्रेफरेंसेस यहां पे लिख सकते हैं. इनकम्स एंड परचेजिंग पावर आपने बोला. सब्स्टिट्यूट्स बोला. एंड टोटल कितने लोग हैं, इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि टोटल कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं. हाउ मेनी टोटल पीपल एग्जिस्ट. ठीक है, और भी बहुत फैक्टर्स हैं. अभी हम सिर्फ डिमांड साइड फैक्टर्स देख रहे हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ भी आएगा. बट दीज आर ब्रॉडली द फैक्टर्स दैट आर डिटर्मिनिंग द डिमांड ऑफ एन आइसक्रीम. बास्किन रॉबिन्स की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो ब्रांड फ्लेवर उसको अभी इग्नोर करते हैं. दोज आर सप्लाई साइड फैक्टर्स. अब देखो, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. नाउ प्ले अटेंशन हियर. अब चैट बंद. अब प्लीज डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड यहां पे है ना. लेट्स फोकस. Assuming all other factors to be constant. All other factors मतलब season, quality, taste, income, preferences, purchasing power. इन सारे फैक्टर्स को अज्यूम कर लिया हमने कांस्टेंट. Assuming all other factors to be constant. This term in economics is called ceteris paribus. All else equal. This is a Latin word. Ceteris paribus means all else equal. At all else equal, all other factors to be equal, the quantity demanded of a good varies inversely with the price. So quantity demanded of a good varies inversely with
प्राइस। अब ध्यान से देखो उसको, दिस डज नॉट मीन दैट प्राइस वेरीज इनवर्सली विद क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन नहीं बताया जा रहा, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन बताया जा रहा है। लेट्स से आई राइट y is equal to 3x. Which of them is an independent variable? Which of them is a dependent variable? If I write y is equal to 3x, which is independent variable, which is dependent variable? अब independent बता दो, which is independent variable of these two? y is the independent variable. y को मैं कुछ भी ability पे रख लूं, या x is independent variable, सोच के बताना, is y independent or x independent? चलो दोबारा लिखता हूं, रुको। वैल्यू ऑफ y will always be equal to 3 times value of x, which is the independent variable. Independent, independent क्या है? x is the independent variable. पहले y क्यों लिख रहे थे फिर सब चैट में? x is independent. If I put x as 7, y will become 21. If I put x as 8, y will become 24. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर रिलेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद प्राइस इज बीइंग शोन। उल्टा नहीं है, उल्टा क्या होता है वो तब देखेंगे जब हम इन्फ्लेशन समझेंगे। उल्टा नहीं बताया जा रहा, ये कह रहा है ऑल अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट एट सेट्रस पैरेबस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड वेरीज इनवर्सली with its price. Quantity demanded of a good varies inversely with its price. मतलब when the price of the good will increase, all other factors constant, quantity demanded will, बोलो, quantity demanded will, when price of good will increase, quantity demanded of that good will decrease. When price will increase, quantity demanded of the good will decrease. उल्टा नहीं है, when price will decrease, quantity demanded of the good will increase. When price will increase, quantity demanded of a good will decrease. Quantity demanded of a good varies inversely with price. This is the law of demand. प्राइस बढ़ेगा तो मैं कम खरीदूंगा, प्राइस कम होगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगा. This is the law of demand. It is only talking about quantity demanded. Quantity demanded is dependent on price. Quantity demanded is dependent on price. Now, as the price falls, इनवर्स वेरिएशन है, उल्टा रिलेशन है, प्राइस कम होगा, सस्ती हो गई चीज, मोर पीपल विल बाय इट. एज प्राइस गोज अप, महंगी हो गई चीज, प्राइस गोज अप, लेस पीपल विल बाय इट. क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस. एज प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. एज प्राइस गोज अप, quantity demanded decreases. Quantity demanded is inversely proportional, varies inversely with price. This is the law of demand. Now, चलो 5 लोगों के नाम मेरे को चाहिए अब. स्मृति, आंचल, शेखर, रूबन, चंद्रशेखर.
सिमिलर से हो गए, कोई नहीं। स्मृति, आंचल, शेखर, रूबेन, चंद्रशेखर, ये 5 लोग हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम वांट ओनली 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। वांट, चाहिए इनको, वांट, डिमांड की बात नहीं हो रही अभी, वांट। ऑल 5 ऑफ दीज पीपल वांट 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, वांट। सो दे आर विलिंग टू गेट 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, बट एबल टू पे नहीं देखा अभी, हमने देखा है विलिंग टू गेट 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। स्मृति wants 1 scoop of ice cream, Aanchal wants, Shekhar wants, Ruben wants, Chandrasekhar wants 1 scoop of ice cream, willing. How much can they pay? What is their ability to pay for this 1 scoop of ice cream? एक ही चाहिए इनको, दो नहीं चाहिए, they only want 1. Smriti is willing to have 1 scoop of ice cream. For this she is able to pay ₹100. Aanchal is willing to pay Achal is willing to have 1 scoop of ice cream, and for this she is able to pay ₹80. Shekhar is willing to have 1 scoop of ice cream, and for this she is able to pay ₹60. Ruben is willing to have 1 scoop of ice cream, and for this he is able to pay ₹40. Chandrasekhar is willing to have 1 scoop of ice cream, and for this he is able to pay ₹20. This is willingness. Willingness is of 1 scoop of ice cream. Ability to pay is 100, 80, 60, 40, 20 of these 5 people. What does law of demand say? Law of demand says quantity demanded of a good varies inversely with its price. So now this is the graph for ice cream. Cost of 1 scoop of ice cream. When cost was ₹100, only one person, Smriti, was able to pay. When cost became ₹80, at ₹80, Smriti was able to pay, and I think name was Aanchal. Aanchal was able to pay. When cost became ₹60, then Smriti and Aanchal can pay, and also Shekhar can pay. When cost became ₹40, Smriti, Aanchal, and Shekhar can pay, and Ruben can also pay. When cost became ₹20, Smriti, Aanchal, Shekhar, Ruben, and Chandrasekhar can pay. So as the price of ice cream is falling, the quantity demanded earlier was only 1. Then it became 2 scoops because Smriti, Aanchal दोनों को एक स्कूप चाहिए था. थर्ड पे फिर शेखर को भी चाहिए, फिर रूबन को भी चाहिए, फिर चंद्रशेखर को भी चाहिए. As the price of ice cream is falling, the quantity demanded is increasing. This is the law of demand. As price is falling, as price is going down, quantity demanded is increasing. Quantity demanded is increasing. Quantity demanded varies inversely with price. Now, this line, ये जो line है, this line, white line, this line is known as the demand curve. Decrease in price leads to higher quantity demanded. When price goes down, there is movement along the demand curve. Earlier price was 100. Earlier price was 100. Quantity demanded was only Smriti. Now price is 20. Now all 5 are demanding it. Quantity demanded is 5. Right? This is the demand curve. Quantity demanded is inversely proportional to price. Is this much clear? क्या ये क्लियर है?
तीक्ष्णता ने पूछा है डजंट द प्राइस गो अप व्हेन थिंग्स आर इन डिमांड। ये उल्टा नहीं है, हम प्राइस नहीं देख रहे अभी, हम अभी सिर्फ डिमांड देख रहे हैं। प्राइस वी विल सी व्हेन वी विल लुक एट इन्फ्लेशन। अभी सिर्फ डिमांड कंसिडर करी जा रही है और कुछ नहीं। दिस इज ओनली द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस देखने के लिए सप्लाई देखना भी जरूरी है। वी आर जस्ट लुकिंग एट डिमांड। एज क्वांटिटी, एज प्राइस विल गो डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। दैट्स इट। इतना ही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। अब डिमांड फॉर एनी गुड, फॉर एनी गुड इन द वर्ल्ड, इसके बहुत एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हम देखेंगे। डिमांड फॉर एनी गुड एज प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस यहां से यहां आया, एज प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। दिस इज द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप निकालना भी सिखा सकता हूं मैं आपको, इट्स नॉट रेलिवेंट। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे नीचे गिर रहे हैं हम इस पे। दिस इज द डिमांड कर्व। As the price decreases, quantity demanded increases. As the price increases, quantity demanded decreases. This is simple law of demand. जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको प्लीज अबैंडन कर देना। अभी डिमांड से प्राइस का रिलेशन नहीं देख रहे, प्राइस से डिमांड का रिलेशन देख रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। प्राइस गोज डाउन, दिस विल गो अप। अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं, इससे इस पे क्या होता है वो अभी नहीं देख रहे, वो बाद में देखेंगे। ओके नाउ, अब ये स्लाइड आपको पूरे कोर्स में, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द एंटायर कोर्स। चैट बंद कर लो यार प्लीज, मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होता हूं इससे। प्लीज लिसन टू दिस, ठीक है। इसमें कुछ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई कुछ नहीं है। देखो यहां क्या लिखा है, पेस ऑफ टीचिंग इन वर्ड्स पर आवर। यहां पर है क्लास नंबर। इन क्लास नंबर 1 पेस ऑफ टीचिंग वाज 100 वर्ड्स पर आवर। इन क्लास 2 पेस ऑफ टीचिंग इज 200, क्लास 3 इट इज 300, क्लास 4 इट इज 400, क्लास 5 इट इज 500। इफ आई वांट टू नो हाउ मच इंक्रीज देयर इज गोइंग टू बी, मैं आपको समझा रहा हूं ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। If I want to know how much increase will there be of teaching pace from class 2 to class 4, then I will move along the graph. Yes or no? I will move along the graph ना। यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, पेस ऑफ टीचिंग और क्लास नंबर। अगर मुझे क्लास 2 से क्लास 4 पे देखना है कि कितनी पेस इंक्रीज हुई, मैं along the graph मूव करूंगा, इसी ग्राफ पे ऊपर नीचे होता रहूंगा। क्लास 5 का पता करना है, यहां पहुंच गया, क्लास 3 का यहां, क्लास 1 का यहां, क्लास 2 का यहां, क्लास 6 का यहां, इसी ग्राफ पे ऊपर नीचे होता रहूंगा। राइट, दिस इज क्लियर। अगर मुझे पेस देखनी है, 400 पेस कहां थी भाई, क्लास 4 पे थी। 200 पेस कहां थी, क्लास 2 पे थी। इफ आई एम चेंजिंग एनी वेरिएबल, इफ आई एम चेंजिंग एनी वेरिएबल विच इज रिटन इन द ग्राफ, अगर ग्राफ पे लिखा हुआ कोई भी वेरिएबल, यहां पर पेस ऑफ टीचिंग लिखा है, यहां पर क्लास नंबर लिखा है, if I am changing any variable which is written on the graph, I will move along this line, या तो ऊपर या नीचे। क्लास नंबर 5 500, क्लास नंबर 2 200, क्लास नंबर 3 300, 4 400, 1 100, along this line I will keep moving। यहां तक क्लियर है? दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। if I have to change something which is a variable here, I will move along the curve, along the graph, along the line. Now imagine a scenario where UPSC says, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि लिसन, प्रीलिम्स 2025 will be held in January 2025।
मान लो यूपीएससी ने ये नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि प्रीलिम्स 2025 विल बी हेल्ड इन जनवरी 2025. Now when this notification has been issued by UPSC, is this date of prelims, ये कौन सा वेरिएबल है? डेट ऑफ प्रीलिम्स. इज डेट ऑफ प्रीलिम्स अ वेरिएबल ऑन माय ग्राफ? Is date of prelims a variable on my graph? Yes or no? अरे यस कौन बोल रहा है? कहां है डेट ऑफ प्रीलिम्स मेरे ग्राफ पे? मेरे ग्राफ पे तो दो ही चीजें हैं, पेस ऑफ टीचिंग और क्लास नंबर. डेट ऑफ प्रीलिम्स इज नॉट अ वेरिएबल ऑन. कहां लिखा है मेरे ग्राफ पे डेट ऑफ प्रीलिम्स? डेट ऑफ प्रीलिम्स इज नॉट अ वेरिएबल ऑन माय ग्राफ. मेरे ग्राफ पे डेट ऑफ प्रीलिम्स नहीं लिखा है. द वर्ड डेट ऑफ प्रीलिम्स इज नॉट रिटन ऑन माय ग्राफ. क्लियर? सो फर्स्ट थिंग, date of prelims is not a variable that is written on my graph. अब आप मेरे साथ इकोनॉमी पढ़ रहे हो फॉर 2025. नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर 2. विल डेट ऑफ प्रीलिम्स इंपैक्ट माय ग्राफ? अगर प्रीलिम्स की डेट मान लो जनवरी में हो जाए तो क्या मैं आपको ज्यादा तेज पढ़ाने नहीं लग जाऊंगा? वोंट आई स्टार्ट टीचिंग यू फास्टर? वोंट आई हैव एन इंपैक्ट? वोंट इट हैव एन इंपैक्ट ऑन मी? इस ग्राफ को छोड़ो, जनरली इस चीज को सोचो, मेरी पेस ऑफ टीचिंग इफेक्ट होती है डेट ऑफ प्रीलिम्स से या नहीं होती? ग्राफ पे वेरिएबल डेट ऑफ प्रीलिम्स रिटर्न नहीं है, दैट इज ट्रू. बट अगर डेट ऑफ प्रीलिम्स जनवरी में आ जाए तो क्या मुझे बहुत ज्यादा तेज नहीं पढ़ाना पड़ेगा? पहले तो हम सबको थोड़ा थोड़ा हार्ट अटैक आएगा, वो एक अलग बात है, वो कोई बात नहीं, माय फादर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, वो भी संभाल लेंगे. बट उसके बाद तो आई हैव टू टीच यू फास्टर. नो, आई विल हैव टू टीच यू मच फास्टर. Date of prelims is not written on my graph, but date of prelims affects my pace of teaching. पेस ऑफ टीचिंग को अफेक्ट जरूर करता है डेट ऑफ प्रीलिम्स, चाहे वो ना लिखा हो. इज दिस क्लियर? ऑफ कोर्स यार, अगर जनवरी में प्रीलिम्स होगा मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ाने लगूंगा, राइट? अब थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन आई शो द चेंज of date of prelims on my graph? डेट ऑफ प्रीलिम्स चेंज हो गई, ग्राफ पे वेरिएबल तो नहीं लिखा हुआ. डेट ऑफ प्रीलिम्स चेंज होने की वजह से मेरी पेस ऑफ टीचिंग भी काफी ज्यादा तेज हो गई. हाउ कैन आई शो इट ऑन द ग्राफ? कैन आई मूव अलोंग दिस लाइन? Date of prelims is not a variable written on my graph, but date of prelims affects my pace of teaching. How can I show the change of date of prelims impacting my pace of teaching on my graph? कैसे शो करूं? I can shift the graph. मैं ग्राफ को शिफ्ट कर सकता हूं. मैं कह सकता हूं ओरिजिनली दिस वाज द कंडीशन. Originally it was first class 100, second class 200, but now after change of date of prelims, this is the new graph. I can say that after the new condition, new graph is like this. Now after the change, in the first class pace of teaching becomes 300. In the second class pace of teaching is directly 400. In 3 it is 500. In 4 it might be 600. Since a variable that has changed, जो चीज चेंज हुई है
graph, then I would go like this. If it was a variable that was written on my graph, I would go along the graph. Since ओके आई नो थोड़ा ब्लर है, मैं वेट कर रहा हूं. आई एम वेटिंग. जब दोबारा सही हो जाए तो बता देना. आई वेट. आई वेट. आई बी हियर. जब जब क्लियर हो जाए देन वील कंटिन्यू. व्हेन इट इज फाइन यू टेल मी. अभिनव, इज इट क्लियर ना? देखना चैट एक बार. ठीक. सो नाउ मैं आपको क्या कह रहा था, मैं बता रहा था चेंज इन डेट ऑफ प्रीलिम्स. Change in date of prelims impacts my pace of teaching. Change in date of prelims has an impact on my pace of teaching. To show the increase of pace of teaching, I cannot move along this graph. ये ग्राफ पे मूव नहीं कर सकता. यहां पर दो ही वेरिएबल हैं, pace of teaching और class number. If I have to show an increase of pace of teaching due to change of date of prelims, I can shift the curve. मैं इस ग्राफ को यहां शिफ्ट कर सकता हूं, यहां शिफ्ट कर सकता हूं, यहां शिफ्ट कर सकता हूं. नाउ आई कैन से दैट ओरिजिनली Shivan's pace of teaching was this white line. After change of date of prelims, his pace of teaching became this yellow line. And why could I not move here? I could not move here because these two variables are the only two variables written on my graph. यही दो चीजें मेरे ग्राफ पे लिखी हैं. अगर एक बाहर का वेरिएबल आएगा, इफ एन आउटसाइड वेरिएबल इज कमिंग, आई हैव टू शिफ्ट द ग्राफ. मेरे को इसे शिफ्ट करके ऊपर ले जाना पड़ेगा. नाउ आई कैन से द येलो ग्राफ रिप्रेजेंट्स पेस ऑफ टीचिंग आफ्टर शिफ्ट ऑफ डेट ऑफ प्रीलिम्स. व्हाइट ग्राफ रिप्रेजेंट्स पेस ऑफ टीचिंग बिफोर चेंज ऑफ डेट ऑफ प्रीलिम्स. ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? बेसिकली इससे मैं आपको यह समझाना चाह रहा था, द एंटायर क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि अगर एक ऐसा वेरिएबल, इफ अ वेरिएबल विच इज नॉट ऑन ग्राफ, नॉट रिटन ऑन ग्राफ, वेरिएबल विच इज नॉट रिटन ऑन ग्राफ but impacts the graph, changes, then graph will shift. ये बात समझ लो तो पूरी इकोनॉमिक्स हम ग्राफ से अब पढ़ लेंगे. इज दिस क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आई होप ये क्लियर हो. बेसिक मैथ्स है यार, बेसिक. दिस इज लाइक बेसिक मैथ्स. ठीक है, चलो. अब हमने क्या क्या देखा था जब मैंने आपसे पूछा व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज चेंजेस इन डिमांड ऑफ आइसक्रीम? आपने क्या क्या बोला?
आपने कहा देयर वाज प्राइस, देयर वाज इनकम, देयर वाज प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये आपने नहीं बताया था एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, ये मैं बताऊंगा आपको। साइज ऑफ मार्केट, सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। हम अब देखेंगे कि डिमांड कैसे चेंज होती है विद चेंज इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हाउ डज डिमांड चेंज व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स चेंज, एक एक करके हम ये देखेंगे। इस पे कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में। प्रीलिम्स में 2021 में इस चीज पे क्वेश्चन आया था, दिस थिंग वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2021। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बिफोर वी फिनिश द क्लास टुडे आई विल मेक यू डू 3 क्वेश्चंस ऑन दिस लॉजिक। तो अब हम ध्यान से सुनेंगे। पहले हम देखते हैं डिमांड कर्व में क्या क्या वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। डिमांड ऑफ एनी गुड, इसमें क्या क्या वेरिएबल्स लिखे हैं। इकोनॉमिक्स में ये कन्वेंशन है दैट प्राइस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड। दिस वॉज द डिमांड कर्व। अगर इस ग्राफ में 2 variables are written, price and quantity demanded, if any other variable other than price will change, if anything other than price will change, then what will happen to the graph? What will happen to the graph if anything other than price changes? Good, the graph will shift. There will be a shift in the graph if anything other than price changes. If price changes, second question, if price changes, what will happen? Second question, if price changes, what will happen? बताओ। Price changes, then there will be movement along the graph, मतलब इसी लाइन पे ऊपर नीचे होगा। मूवमेंट अलोंग द ग्राफ, है ना। ये बात आई होप अब समझ आ गई होगी। If anything other than price changes, graph will shift. If price changes, movement will be along the graph, है ना। ठीक है, अब हम देख रहे हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज प्राइस, ये तो हमें पता ही है। इफ प्राइस चेंजेस देयर विल बी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। पहला डिटर्मिनेंट इज प्राइस। If price changes, there will be movement along demand curve. We already know quantity demanded of an item is inversely varying with its price. ये तो क्लियर है। प्राइस चेंज होगा तो इसी ग्राफ के अलोंग ऊपर नीचे मूवमेंट हो जाएगी। इफ प्राइस गोज डाउन, प्राइस गोज डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। यहां पर पहले प्राइस था, अब यहां प्राइस पहुंच गया तो क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। ये तो क्लियर है। प्राइस के साथ तो देखना इट्स वेरी इजी, प्राइस के साथ देखना तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। प्राइस के साथ प्राइस गोज अप, इफ प्राइस गोज अप फ्रॉम हियर टू हियर, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, मूवमेंट विल बी अलोंग द ग्राफ। तो बहुत आसान है। अब
यहां पर एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, when we will study these determinants of demand, when we will study these determinants of demand, assume all other things constant. हम सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज देखेंगे, एक वेरिएबल का चेंज, ये नहीं कि सबका चेंज देख लिया, बस एक वेरिएबल का चेंज देखेंगे एट वन पॉइंट. All other things constant is called what in economics? All other things constant is called ceteris paribus. ठीक है, चलो. प्राइस का तो क्लियर है, मूवमेंट अलोंग द कर्व. प्राइस, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज प्राइस. क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस. इफ प्राइस गोज अप, क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन. इफ प्राइस गोज डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप. ये तो फेयर है. अगर हम यहां पर देखें डिमांड ऑफ व्हीट इन द इकोनॉमी, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी, प्राइस गोज डाउन, डिमांड गोज अप. ये तो फेयरली क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें क्या होगा, शिफ्ट ऑफ कर्व होगा, कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहा होगा ग्राफ. देखते हैं. अब नेक्स्ट वेरिएबल है इनकम. इनकम. अब आप ये सारे अगले एग्जांपल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड विद योर ओन लॉजिक. अपने ही लॉजिक से समझना, खुद को प्लेस करना इन द पोजिशन, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ रैशनल इकोनॉमिक एक्टर. सब कुछ आसानी से समझ आएगा. थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ. एज योर इनकम इंक्रीजेस, as your income increases, your demand for goods will increase or decrease. Will you buy more things or buy less things when your income increases? When your income increases, will you buy more things or less things? You will generally buy more things. So as income increases, demand for goods also increases in normal circumstances. What are normal circumstances? हम इसकी बात करेंगे. Now, look at this graph. This is the graph depicting demand for shoes. On this side there is price. On this side there is quantity demanded. मैं इस ग्राफ को दोबारा बना देता हूं. I'll make it on a big level. I will say graph for demand of shoes. This is price, this is quantity demanded, this is the demand curve. Now what has happened is my income has increased. Is income written on the graph? No. That means when income has increased, I have to shift the graph. Now where should I shift? Right or left? Where should I shift? Right or left? ये बता दिया तो आपको सब समझ आ गया है. I have to shift this graph towards the right. अब देखो, what is the implication of this word? मैंने ग्राफ इधर शिफ्ट किया. What does this mean? Earlier at price P1, कोई भी प्राइस मान लो, at price P1 I was buying 2 shoes. Now at price P1 I am buying 4 shoes because I can simply afford to pay more. Income increased, demands increased, graph shifted to right. Earlier at price of shoes, price is same, सिर्फ income change हुई है. At this price earlier I was buying 2 shoes because my income was 10,000 rupees per month. Now my income is 20,000 rupees per month. So at the same price I am now buying 4 shoes. Graph has shifted to right. समझ आया? आपने सही बताया. आई थिंक सबने. आई थिंक एवरीबडी. हाँ, समझ आया.
At the same price, I am now buying more shoes. This is the reality now. Earlier, this was the reality. Now, this is the reality. Earlier, at this price, I was buying 2 quantity. Now, at this price, I am buying 4 quantity. Next. As incomes increase, people will buy more shoes. Graph will shift to the right. Earlier, at this price level, only this much shoes were being bought. Now, this much shoes are being bought. So, demand for goods, quantity demanded of the goods has increased because of increase in income. Same example, demand for Nike shoes. Earlier, you could not buy more than 1 pair of Nike shoes. Price of Nike shoes utna hi hai. Earlier, your income was 20,000 rupees per month. You could only buy 1 pair of Nike shoes in 1 year. Now your income is 50,000 rupees per month. Now at the same price, you have just shifted the graph and you can buy more quantity. You can now buy 2 pairs of Nike shoes in a year. Got it? Shift of curve to the right. Now, up. As incomes increase, quantity demanded of shoes increases. Okay? अब ध्यान से सुनना प्लीज. अब इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने का बहुत चांस है. ध्यान से सुनना. Let us talk of demand for roadside unbranded clothes. Demand for roadside unbranded clothes. आपने देखा होगा roadside unbranded clothes बहुत मिलते हैं, right? You must have seen. बहुत जगह होता है इंडिया में, रोड साइड पे, रेडी पे लोग क्लोथ बेचते हैं, and a lot of people buy from there also, right? Demand for roadside unbranded clothes. This is your current demand. Your income is 20,000 rupees per month. As your income will increase, will you demand more or less of roadside unbranded clothes? Your income now becomes rupees 2 lakh per month. At 2 lakh rupees per month, will you buy roadside unbranded clothes? No. या तो आप खरीदोगे ही नहीं, आप बहुत कम खरीदोगे. So in this case, where should I shift the demand curve? In this case, where should I shift the demand curve? Good. In this case, the demand curve will shift to the left. In this case, demand curve will look something like this. Earlier, at this price earlier, you were buying 2 clothes in a month. Now at this price, you are buying only 1 cloth in a month. Because your income has increased, you will now no longer buy roadside unbranded clothes. That means, in cases of some goods, अब ध्यान से सुनो, in some goods, my demand increases with increase in income. हमने देखा Nike shoes में. In some goods, my demand increases with increase in income. In some goods, my demand decreases with decrease in income. In some goods, my demand decreases with decrease in income. As your income will increase, you will demand less of roadside branded clothes. The demand curve will move on the inside. That means, with rise in income, there is increased demand of some goods. With rise in incomes, the demand of some goods increases.
These goods are called in economics normal goods. इनका नाम है normal goods. With increase in income, demand of some goods will increase. This is normal goods. With rise in incomes, demand of some goods will decrease. These are called inferior goods. Inferior मतलब inferior quality नहीं है यहां पे. This is not English meaning of inferior. This is just inferior good. Inferior in terms of income. Inferior मतलब inferior quality नहीं है. You perceive it to be inferior quality, that is up to you. But if the demand of good will decline with rise in income, it is inferior good. हमने यहां पर क्या देखा? रोड साइड अनब्रांडेड क्लोथ्स. ये क्यों होता है? Because generally they are better options available. You have better options to these available. You have better branded clothes available. You can go to a mall and buy. Normal and inferior goods की definition समझ आई? Understood the definition of normal and inferior goods? एग्जाम्पल से समझ आया नॉर्मल इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस? बढ़िया, शाबाश. चलो, व्हाट वर वी सीइंग? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. प्राइस के साथ हमने देखा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. दिस वी हैव सीन. व्हेन वी विल स्टडी दीज एनी ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स, वी विल अज्यूम ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट. ये रूल याद रखना. प्राइस के साथ हमने देखा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. इनकम के साथ हमने देखा ईदर इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड. अब ये प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स देखते हैं. आफ्टर वी लुक एट, आज की क्लास यहां पे खत्म करेंगे प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स पे. इसके बाद आपसे एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर यहां पे खत्म करेंगे. ठीक है, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स देखते हैं. लेट्स लुक एट दिस. इस पे 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था. ये करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, देन 26 वाले जा सकते हैं, 25 वालों की फिर एक्टिव रिकॉल करवाऊंगा मैं. ठीक है, चलो देखो. प्राइस ऑफ अदर गुड्स. पहला टाइप ऑफ गुड है सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाम से ही क्लियर है, गुड्स दैट आर रिप्लेसमेंट ऑफ वन अनदर. I can substitute this good for some other goods. I can substitute my Apple laptop for a Windows laptop. कर तो सकता हूं, सेम काम करेगा ऑलमोस्ट. I can substitute Coke for Pepsi. I can substitute Mirinda for Fanta. I can substitute Sprite for 7 Up. किस काम के लिए सब्स्टिट्यूट करना है वो मत सोचना, है ना. I can substitute one good for another good. I can substitute tea for coffee. है ना. अब बटर और जैम, मुझे ब्रेड खानी है तो either I will eat it with butter or I will eat it with jam. I can substitute butter for jam, है ना. These are substitute goods. अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस से डिमांड कर्व को क्या होता है. कोक राइट नाउ, कोक राइट नाउ, द ड्रिंक, ड्रिंक वाला कोक, और कोई कोक मत सोच लेना. द ड्रिंक कोक कॉस्ट ₹100 पर लीटर. द ड्रिंक पेप्सी कॉस्ट ₹100 पर लीटर टुडे. टुमारो पेप्सी कॉस्ट ₹200 पर लीटर. कोक कॉस्ट ₹100 पर लीटर. कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ, पेप्सी का प्राइस चेंज हो गया. ठीक है. नाउ इन दिस केस यू विल नाउ बाय मोर और लेस ऑफ कोक. ड्रिंक, कोक वाली ड्रिंक प्लीज. नाउ यू विल बाय मोर और लेस ऑफ द ड्रिंक ऑफ कोक. यू विल नाउ बाय मोर ऑफ द ड्रिंक कोक. आप पेप्सी खरीदने की जगह भी कोक खरीदोगे. यू विल बाय मोर कोक.
drink, Coke drink. You will buy more Coca-Cola drink. So demand curve will shift outside. Demand curve will shift to the right. Earlier at rupees 100, you were buying only one bottle. Now at rupees 100, you will buy two bottles, because even people who were buying Pepsi will now start buying Coca-Cola. So as the price of the substitute, has increased, quantity demanded of the good has increased. कोक के सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा हुआ तो कोक की डिमांड बढ़ गई. As the price of substitute increases, the demand for good increases. As the price of the substitute यहां पे क्या था? Pepsi was the substitute. As the price of substitute has increased, the demand for Coke has increased. Because अब substitute महंगा हो गया, तो पेप्सी खरीदने वालों ने भी कोक खरीदना शुरू कर दी. बेसिक लॉजिक. एक और देखते हैं. Price of other goods. Second type of good is complement goods. Goods that complement each other. For example, you compliment people of the opposite gender, usually to no effect, but you still compliment. Complements are goods that are consumed together. For example, bread and butter, milk and coffee, cricket bat and cricket ball, badminton racket and shuttlecock, Kindles and e-books to be read on Kindles. Complement goods are goods that are consumed together. Bread and butter, milk and coffee, cricket bat and cricket ball, badminton racket and shuttlecock, Kindles and e-books that we read on a Kindle. These are consumed together. Complement goods. इसमें देखते हैं. Now, this is the demand for e-books. E-books जो हम Kindle पे पढ़ते हैं, Amazon Kindle पे जो e-book पढ़ते हैं, उसकी डिमांड की बात हो रही है. This is the current demand. At the moment, Kindles cost rupees 5,000 and this is the demand for e-books. Kindle की कॉस्ट 5,000 रुपए है. आप Kindle खरीदने के बाद e-books खरीदते हो Kindle पे पढ़ने के लिए. Now tomorrow Kindle start costing rupees 1,000. Kindle सस्ता हो गया. Now when Kindle start costing only rupees 1,000, many more people will buy Kindles. So what will happen for the demand of e-books? Will it go up or down? As the demand of e-books here will go up or down? It will go up. More people will buy e-books now. As more people will buy e-books, Kindle सस्ती हो गई, सबने Kindle खरीद लिया, अब ज्यादा लोग e-book खरीदेंगे. Demand of e-books will go up. Where should I shift the graph? Demand up means graph will shift outward. There we go. Demand for e-books will now increase. You will buy more e-books because Kindles have become cheaper. Kindles have become cheaper. You will buy more e-books. So what did we derive from this? As price of the complement decreases, demand for the good increases. और ऑब्वियसली उल्टा भी ट्रू होगा. अगर एक स्टेटमेंट हमने ट्रू कर ली तो उल्टा भी ट्रू होगा. प्लीज राइट दिस डाउन. ये प्लीज लिख लो.
Whatever is written on the board, please write down. लिख लिया तो डन बोलना. ये भी लिख लो. ये लिख लिया होगा अब तक, आई एम अज्यूमिंग. ये भी लिख लो. ऑल्दो ये सब आपके नोट्स में लिखा है. राइट दिस. ओनली व्हाट आई हैव मार्क्ड इन येलो, प्लीज राइट दिस ओनली. ये सब नोट्स में लिखा है वैसे, है ना. वन पेजर में भी लिखा है. वन पेजर में भी लिखा है, नोट्स में भी लिखा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न मोर एक्टिवली. और अगर ये ट्रू है तो उल्टा भी ट्रू होगा. ऑफ कोर्स इवन द ऑपोजिट ऑफ दिस विल बी ट्रू, है ना. ऑपोजिट तो हम लॉजिक से ही ट्रू कर सकते हैं. अब 2.5 घंटा आपने मेरे को झेल लिया है, उसके लिए 2.5 घंटे से ज्यादा ही झेल लिया है, उसके लिए थैंक यू. एक क्वेश्चन आप करो प्लीज. यस, सॉल्व दिस क्वेश्चन देन यू कैन गो. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2021. Other things remaining unchanged. Market demand for a good might increase if price of substitute increase, price of complement increase, inferior good income of consumers increase, price fall. Solve this. You know, आपको ना कभी मैं पैटर्न, चलो आप कर लो सॉल्व, देन आई टेल यू. ट्वेंटी मोर सेकेंड्स. चलो गुड. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा एक बार. लेट्स लुक एट. देख, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज दीज क्वेश्चंस हैव कम इन द प्रीलिम्स. दिस वी कैन नॉट एस्केप. लाइन से 3 गलत जवाब तो मुझे अभी दिख गए. ठीक है. अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड. डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ. ठीक है. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस. देखते हैं इसको. प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज्ड. डिमांड फॉर कोक इंक्रीज्ड. पहला स्टेटमेंट तो सही है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अब मैं आपको, अब प्लीज ध्यान से सुनो, अब मैं आपको दिखाता हूं एमसीक्यू पेपर में सॉल्व करने कैसे होते हैं. लेट मी शो यू हाउ पेपर में एमसीक्यू सॉल्व करे कैसे जाते हैं. आपने 1 सही कर दिया. नाउ लुक एट दी ऑप्शंस. बी हैज 2, 3 एंड 4. बी को अभी ही काट दो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा. अभी काट दो बी को, बाद में इट विल लीड टू कंफ्यूजन. You saw one statement is correct, you have read this,
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर गुड इंक्रीजेस। बी में वन ऑप्शन नहीं है, बी कैन नॉट बी राइट, बी को यहीं पर ही काट दो। दिस विल सेव यू मैसेज ऑफ टाइम एंड बहुत कंफ्यूजन बचेगी आपकी। सेकेंड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, things that are used together. If price of Kindle will increase, less people will buy Kindle, then the demand for ebooks will decrease because less people have Kindle. Kindle पहले 10 लोगों के पास था, अब कम लोगों के पास है। Less people are buying Kindle, so less will buy ebooks. They are used together. यही एग्जाम्पल हमने अभी देखा है। So second statement is wrong. Now, the moment you have marked second statement wrong, any option that has the second statement should be marked wrong. इसको wrong mark कर दो, इसको wrong mark कर दो. So it cannot be B, it cannot be D. Now, all of it, अब देखो, statement 4 is present in statement A and statement C. A और C दोनों में ऑप्शन 4 है, तो क्या मुझे ऑप्शन 4 पढ़ना चाहिए? मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे को पता है ऑप्शन ए या ऑप्शन सी सही है, मैं ऑप्शन यहां पे फोर्थ स्टेटमेंट क्यों पढ़ूं? फोर्थ स्टेटमेंट तो दोनों में है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आई नो, इवन फॉर माई नॉलेज आई नो, प्राइस फॉल्स, डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ इट हिंजेस ऑन द थर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3, द गुड इज एन इंफीरियर गुड। What are inferior goods? In inferior goods, the demand decreases with increase in income. Inferior goods are roadside unbranded clothes. The good is an inferior good, okay, and income of consumers increase. If income of consumers increase, the demand for an inferior good will decline. बट हमें क्या बताना है? डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आई विल एलिमिनेट थर्ड स्टेटमेंट। अगर मुझे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट भी पता होती गलत है, आई कुड हैव कम टू ऑप्शन ए। समझ आया कैसे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, चलो चैट पब्लिक करना एक बार, मैं भी देख लूं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई विल सी यू नाउ टुमारो। ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हमें और बहुत क्वेश्चन देखने थे, हमने अभी और बहुत डिटर्मिनेंट्स देखने, हमने सिर्फ प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ अदर गुड्स देखा है। यहां से कंटिन्यू करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। ट्वेंटी 26 वाले जा सकते हैं। देखो यहां पर अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन। मैंने आज बहुत स्लोली सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आप रिकॉर्डिंग देखो या आप टेक्स्ट पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव रिकॉल करेंगे। हाँ हाँ, 2026 वाले जा सकते हैं, 2025 वाले तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे तो अभी मजे लेने हैं मैंने। हमारा बेइज्जती सेशन, एक्टिव रिकॉल बेइज्जती सेशन विल बी डन नाउ फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर 2025, वेटिंग फॉर एक्टिव रिकॉल बेइज्जती सेशन। आ जाओ चलो।
कोई कह रहा है मजे तो वो लेती थी सर। यार मतलब आई अंडरस्टैंड आई एम यंग, बट थोड़ा तो तुम मतलब समझ लो कहाँ हो, क्या बात कर रहे हो, है ना। चलो, व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटी 51A clause F? What does this talk about? बोलो। अरे एफ क्लॉज कौन सा है, स्पेसिफिकली क्लॉज एफ। ठीक है, व्हाट इज 51A क्लॉज आई? ये किसके बारे में बात करता है? देखो, इंटरव्यू में ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द इंटरव्यू इज टेल अस ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड यू हैव टू मग इट अप, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो मैं अब आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज याद करा देता हूं। आई विल मेक यू रिमेंबर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक। आर्टिकल 51A क्लॉज ए इज फॉर एंथम। ये लिख लो इफ यू वांट टू। ए इज फॉर एंथम। So 51A clause A is respect the ideals of the constitution, respect the anthem, abide by constitution, respect its ideals, institutions, national flag, national anthem। 51A। ठीक है। B, B stands for बापूजी, यानी कि गांधी जी। So second one talks about cherish the noble struggle, that was noble ideas of the freedom struggle, noble ideals and ideas of the freedom struggle। B is bapuji। C, C is center। C is unity and sovereignty of India, integrity of India, to uphold the unity and sovereignty and integrity of India। 51A clause C। D, D stands for defending the country, to defend the country and to render, sorry, to defend the country and to render national service when called upon to do so। ठीक है। E, E stands for equality। Equality is to promote the spirit of common brotherhood, to promote women dignity, transcending religious, regional, sectional, and linguistic lines, equality across the nation। F, F stands for forts, to safeguard our composite culture and rich heritage, composite culture and rich heritage। F, G, G stands for green, focus on environment, compassion towards living beings। H, H stands for high tech, to cultivate the spirit of reform, to have scientific temper,
This is 51A clause H. I. An eye for an eye makes the whole world blind. I stands for abjure violence. J. J stands for genius. What is J? Excellence in all spheres of individual and collective being. J is genius, excellence in all spheres of individual and collective action. K. K stands for knowledge. Duty of parents to send children to school. यही है फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी एज अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री. जे से जीनियस जान के किया है, जे से किया है ताकि याद रहे. देयर इज नो अदर वे टू रिमेंबर. जे से जीनियस किया है टू रिमेंबर. है ना. अब नहीं भूलनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज आपको. ये आपको इसलिए याद करनी होती है बिकॉज इफ समटाइम्स इन मेंस, let's say you are writing an answer related to our culture and heritage, you can always quote fundamental duty 51AF. If you are writing an example on women's rights, you can quote this fundamental duty. If you are writing an answer in science and tech development in India, you can quote this fundamental duty. बहुत हेल्प होती है. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी डीपीएसपी से भी कंफ्यूज किया जाता है. ठीक है, तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस नाउ. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट टाइम डीपीएसपी रटेंगे. अब एक्टिव रिकॉल अब करेंगे, कल नहीं करेंगे, फ्राइडे करेंगे. फ्राइडे को डीपीएसपी रटेंगे. ठीक है, जितने आर्टिकल्स आपको याद कराने हैं उसमें से कई तो मैं ही याद करा दूंगा, फिर डीपीएसपी रटेंगे. ओके हिमांशु, इट इज एक्चुअली पैराबोलिक. आप अपनी नोट्स में देखना, इट इज पैराबोलिक. वी आर जस्ट एग्जामिनिंग इट लाइक दिस फॉर सिंप्लिसिटी. चलिए, अब हम डीपीएसपी रटेंगे ऑन फ्राइडे. फ्राइडे डीपीएसपी रटते हैं. चलो, थैंक यू. हैव अ गुड इवनिंग. बाय बाय.